Okay, I'm going to count for 5. Not out of chairs. Huh? It's a house full today, huh? Overflowing actually, right? Feels really good, isn't it? So, guys, are you all excited for today? That's all? Are you all excited? Are you all excited? I love that feeling. Chalo, we are just making some people settle down. Oh, you know this. Okay. This will be rotated. You know that. उसको बोलो ना जरा और एक दूसरा और रहेगा chairs. Who's not got a seat for chairs for to sit? We can also sit here in the front. That's the ultra millionaires seat. We used to do that, right? Srini, किधर है Srini भाई? हम लोग सब सामने बैठ रहे हैं नीचे, right? Okay, that's how we all had started, guys. By the way, okay, we used to have a huge system, and it feels beautiful to see that the entire house is full, right? I think we are close to 100. Now this 100 has to become 200, 400, 1,000 eventually, right? That's the commitment from everyone. Okay, all right. Are you guys ready? By the way, who has not got the seat? We can actually sit here. Huh? We used to sit here. When the system used to happen earlier before COVID, we all used to sit in the front. That is the actual millionaire seat. Okay? Anyways. All right. All right. Ready? Yeah. Okay, today is going to be an awesome, awesome, awesome day. Okay? Because somebody absolutely special is going to come here. Trust me, guys. Okay, I have served so many years. I have been in the business for so many years. I have never heard him so up close and personal in my life till now. Okay, you guys are absolutely lucky. And we all are lucky actually, right? Okay, so for that, we all need to be here. Okay, we all need to be here. Okay, so mobile phones, what do you need to do? You all know, no? क्या करना है? बताओ. Switch off. Switch off कर दो और as Prani Bhai says, exchange कर दो. Exchange it with your neighbor. Okay, we can do that also. Okay, but please keep them all in silent mode. We don't want to get disturbed. Okay, we don't want our neighbors to get disturbed. And more importantly, we don't want our speaker to get disturbed. All right, so keep it in silent mode, keep it in, switch it off. Best is to switch it off. Okay, now we'll do a quick ritual. Okay, everybody stand up, please. Acha, before that, who all did not dance? Raise your hand. हाँ, ये तो इतना डांस कर रही थी, क्या ये हाथ उठा? और who did not dance? This one. Okay, come. Who else? Who else? Nominate names. Come. Who? Come. You also come. Come. Who else? Who else? Janice. Who? Errol. Anybody else? Anybody else who did not dance? Only her? Great. So she is in the spotlight now. Everybody sit. Sit. Okay. This is going to be a special number for you. Okay. Only you will dance. Everybody will clap. Right? Chalo, shuru ho jao. Clap. Yeah. Come on. Yeah. Yeah. Super.
Good. Big round of applause. All right. Now are you guys excited now? चलो खड़े हो जाओ फिर से. Stand up again. Okay. So we're going to do a quick ritual. Okay, we're already late for the session. Let's do it fast. Okay, so what are we going to do? Nothing. Just calm yourself down. Close your eyes. We'll take few deep breaths. Okay, and all the thoughts needs to go away from your head. We all need to be here. So take a deep breath. Hold for a few seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Release. Take one more deep breath. All the thoughts should be away. Release. Do it again. Take a deep breath. 1, 2, 3, 4, 5. Release. Open your eyes when you're all ready. And give a big, broad smile to everyone around you. Feels good? Chalo, sit down, sit down, sit down, sit down, sit down. Keep your notepads out. Okay. Pen out. Okay. Make sure that you take notes, maximum notes. Okay. Because this is one of a kind of opportunity that we all have got to listen to somebody who's ultra precious for all of us. Okay. Ready? Everybody? Yeah. Do you know who's going to come? No? Nobody knows? No. Super. Okay. So let me tell you little bit about him, because I can only tell little bit, because there's so many things to talk about him. And if I have to tell him about him, no, then the entire time will go. We don't want to waste his precious time, right? So he comes from medical field. He used to be a doctor, not just a doctor, but a gold medalist doctor. Okay. Plus, not just one degree, multiple degrees. I can't even pronounce those degrees. You know, it's very difficult to pronounce those degrees because they're so difficult. And he studied for years. Okay. After that, when he became a doctor, he was one of the most famous doctor in India. Most famous. Okay. Every hospital, every big institution will want him to be in their organization. Okay. So he's that kind. So his corporate was like soaring, absolutely soaring, his career. But then you know what happened? He chose to change not just his own life, but millions of life around him. So he said, being a doctor is great, but being a network is greater, because you can truly help millions permanently in their lives, right? That's when he actually started the business, okay? With none other than AVP Shipra. Imagine, right? And AVP Shipra and this person are siblings, brothers and sisters. And you can actually truly see their love. Okay, their love. It is like with pure soul. Okay, and the same thing, no, he spreads in his entire organization. Right? He has got sea of people who are so successful we can't even imagine. Right? And we hear him only in big forums like the DWDs and the Magics and all the big forums, big events. Okay. Now we are so lucky that this handful of people are able to see him, talk to him, okay, learn from him, so up close and personal. So today is absolutely lucky day for all of us. You know why? Because there are not just sapphires, they are not just platinums, there are diamond stars in his organization. Right? Not just that, guys. He's got VCs in his organization. He has got AVPs in his organization. He has got blue diamonds in his organization. Okay.
So he is that kind of a person. Meaning, if you all listen to him today very carefully and implement whatever he says, then we all can become as successful as he is. Okay, in the given time, right? Okay, so what are we going to do? We're going to welcome him. Just like that? No. Let's welcome none other than AVP Oni. Stop, order. Please, take your seat. बैठिए आप लोग. Okay, recording also वहाँ पे चल रही है. So building pressure. को देख तो लूं मैं, you know. कभी देखा नहीं है. कुछ कुछ लोगों को देखा है, ऐसा लग रहा है मुझे. So हिंदी, English, everything okay. हाँ? I was given freedom yesterday to talk in any language. That's why I agreed. So it's been 10 years that I am taking system in Dubai. Last system was 2015. Okay. So 14, 15 somewhere. Anybody from that time? हाँ, मैं कहा ना, दो कुछ लोगों को तो पहचानता हूँ यहाँ पे. तो देख, एक स्कूल था वहां पे बर्दुबई में, उसके हॉल में होता था ना. व्हाट वाज द स्कूल? हाँ हाँ, कुछ वही इतना याद है मुझे. मेट्रो स्टेशन था एक उधर, और नीचे उतरती अंदर स्कूल का कैंपस था, एंड देन देयर वाज अ हॉल. हाँ. ओके. तो उसके बाद आज बीच में इन्होंने दिया ही नहीं मुझे. द रीजन वाज दैट कि आई केम बैक टू दुबई आफ्टर 10 years. बीच में 10 साल तक दुबई आया ही नहीं. रीजन, आई वाज बैन इन दुबई. आपको लग रहा मजाक कर रहा हूँ? हाँ. कह रही हाँ. No, honestly, I was banned in Dubai. So 1 month back, they invited me back कि now you can come back. We want you in Dubai. तो इसलिए वापस आया मैं. अभी भी लोगों को लग रहा है ऐसे मजाक कर रहा है. Honestly, मेरा फिंगर स्कैनिंग, आई स्कैनिंग सब हुआ था, एंड देन सेंड मी बैक. उन्होंने बोला कि तुमने यहाँ पे इतने साइन अप कर दिए हैं कि माहौल बिगड़ गया यहाँ का. अरे अभी भी मजाक लग रहा है लोगों को. सो दे सेंड मी बैक. फिर मैंने वीजा अप्लाई किया. उन्होंने बोला देयर इज अ लाइफ टाइम बैन. तो लाइफ टाइम बैन था. एंड देन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. ऑल ऑफ अ सडन समबडी सेड दैट वी वांट यू बैक. उन्होंने पेपर भेजा, मैं वापस आ गया. सो इट्स बीन 10 years दैट आई एम बैक टू दुबई. और फिर आज यहाँ पे. एनीवेज, तो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड मी बिफोर? कभी भी? तुम लोग तो रहने दो यार. वीकॉन? विच वीकॉन? ये मई और लास्ट सितंबर वीकॉन, 1 year बैक. हाँ, ठीक है. सो एनीवेज, सो मोस्ट ऑफ यू आर सेटल्ड. आपको भी देखा है कहीं मैंने, ऐसा लग रहा है. Maybe somebody you are resembling, जो पहले देखा था मैंने दुबई में. So I asked you upline, what do you want me to talk? क्या बात करनी है? तो जो उसने मुझे पॉइंट बोले, मैंने कहा यार 10 साल पहले भी यही पॉइंट थे सारे. क्या करना है? चल नहीं रहा है तो क्या करना है भाई? पावर छोड़ रहा है क्या? तो वॉट एवर पॉइंटर्स ही गेव मी, 10 साल पहले भी वही था. तो आई सेड यार ये तो 10 साल पहले भी वही बात. जब मैं 10 साल पहले आया था तो भी लोगों ने बोला कि यही बात करनी है, और 10 साल बाद भी वही बात करनी है. सो व्हाट हैज चेंज? नथिंग हैज चेंज्ड. एनीवेज, सो बाय प्रोफेशन आई एम डॉक्टर. ये तो पता ही है आपको. फिर चला गया. कुछ ऐसा कुछ है क्या, जोन है क्या जाने आने वाला? तो मैं उधर नहीं जाऊंगा फिर. तो ये कैमरा भी लगा है ना यार, तो हिल नहीं सकते ज्यादा. सो बाय प्रोफेशन आई एम अ डॉक्टर, नॉट वॉज.
कहाँ रहना है बता दो। हाँ, एनीवेयर, या एक बार हमारे अपलाइन के साथ भी ऐसे ही हुआ था, तो एवी पीछे बैठा था, उन्होंने माइक खींच के मारा था यहाँ से। डुप्लीकेशन का बिजनेस है वैसे, समझ रहे हो। दिल्ली में हुआ था ऐसा। तो प्रोफेशनली डॉक्टर, ठीक है, बिजनेस में आने का कोई मूड नहीं था। देयर वाज नो थॉट ऑफ ज्वाइनिंग ए बिजनेस और डूइंग एनी बिजनेस, बिकॉज आई थॉट कि व्हेन यू स्टडी फॉर समथिंग फॉर 10 years, तो दैट इज योर डेस्टिनी फॉर द लाइफ। वही होता है और कुछ होता नहीं है। एंड व्हेन यू गेट ए गुड जॉब इन इंडिया मीन्स की गुड सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, और क्या चाहिए, पूरी मजे होते हैं। तो टाइम वॉज 9 to 4। आई नेवर रीच्ड एट 9 एंड नेवर लेफ्ट एट 4। तो अपना काम 10 to 3 था। उस 10 to 3 में फ्रॉम 10 to 11 खाली जो नए बच्चे होते थे, जैसे स्टूडेंट्स होते थे, उनको मैं बताता था कि काम करना कितना जरूरी होता है, हाउ इम्पोर्टेंट इज पेशेंट एंड एवरीथिंग। एंड कम से कम एवरी डे 500 पेशेंट्स आते थे, 500 1000 पेशेंट एवरी डे। तो मैं 10 बच्चों को ऐसे बताता था आगे लाइन से, जो पीजी करने आते हैं ना, पोस्ट ग्रेजुएट एमडी करने, मैं लाइन से उनको बैठाता था। 100 लोगों की लाइन होती थी। आई आस्क्ड देम टू टेक सैंपल, और जो सैंपल पहले लेगा उसको ट्रीट मिलेगी। तो जो लाइन पहले खत्म करेगा, तो 10 से 11 में उनकी ट्रेनिंग करता था। आई यूज्ड टू ट्रेन देम कि काम कैसे जल्दी करना है, बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू फिनिश 1000 पेशेंट एवरी डे। एंड देन फ्रॉम 11 to 12 इट्स टी ब्रेक। टी ब्रेक होता है कि हर जगह होता है ऑफिस में, तो इट्स टी ब्रेक। 12 to 2, 2 घंटा में सारा काम खत्म करता था मैं। वो जो 1000 केसेस होते थे, 2 3 लोग मिलके हम लोग 12 to 2 में सारा काम खत्म कर देते थे। एंड फ्रॉम 2 to 3 लंच ब्रेक। अब 3 to 4 में काम वो करेगा जिसका काम बचा हुआ है। हमने तो काम पहले ही खत्म कर दिया, तो उसके बाद बातें कर रहे हैं या मौका मिला तो निकल गए कुछ ना कुछ करके। तो लाइफ वॉज चिल, कोई दिक्कत नहीं थी ऐसे। सैलरी ऑब्वियसली एज कंपेयर टू दुबई कुछ भी नहीं थी, है ना, बट खर्चे भी कुछ नहीं थे। एक्चुअली वी नेवर, मुझे पता ही नहीं था खर्च करते कैसे हैं। खर्चा मीन्स व्हाट, मूवी, पिज्जा, मॉल, मॉल में विशाल मेगा मार्ट, बिग बाजार, इसके अलावा क्या पता था ये गुच्ची उच्ची, तो हमको पता ही नहीं था होता क्या है ये सब। आई नेवर बीन टू दैट एरिया, उधर कभी गए, दिल्ली में था भी नहीं सब कुछ पहले। सो दैट वाज द लाइफ। और जिस दिन बहुत खुश हो गए, उस दिन बटर चिकन। नो, बटर चिकन में भी एक ट्रिक थी। ट्रिक क्या थी, इफ यू बाई ए बटर चिकन फुल प्लेट, 500 रुपीज। एंड इफ यू बाई वो जो क्या कलमी कबाब, छोटे छोटे पीसेस, जो लेग पीस नहीं होते, वो लेग पीस की तरह कटे होते हैं, वो देखने में लगता है लेग पीस है, वुड बाई इट 100 रुपीज। एंड जस्ट गो फॉर, भाई वो बटर चिकन की ग्रेवी दे देना एक्स्ट्रा, कम पड़ गई थी, तो दे विल गिव यू इन 50 रुपीज। दोनों को मिक्स करो घर में, थोड़ी देर छोड़ो, एंड बिकम्स बटर चिकन। सो दैट इज हाउ आई यूज्ड टू सेव मनी, कि 150 देके 500 का मजा लेना। तो सारे ट्रिक पता थे, तो कुछ खर्चा ही नहीं था ऐसा, तो कुछ करना क्यों है। सो ऑल ऑफ ए सडन वन डे शिप्रा कॉल्ड, और उसने बोला कि भाई मैंने कुछ शुरू किया है। मैं कहा, ठीक है, मुझे क्या करना है, किया होगा शुरू। नहीं सुनो, बहुत बड़ा है, अच्छा है। मैं कहा तो करो, किसने रोका है। एंड देन नेक्स्ट डे शी कॉल्ड मी बैक अगेन, तुमने कुछ सोचा। आई सेड किस बारे में। नहीं, बिजनेस। मैं कहा तुम बिजनेस कर रहे हो, मैं क्या सोचूंगा, मैं क्या सोचूं। नो नो, यू ऑल्सो स्टार्ट विद मी। आई सेड व्हाई। तो नहीं, इस इक्वल पार्टनरशिप पोजीशन और ये सब कुछ है। तो मैंने कहा क्या करना है, तो इसे ट्रांसफर मी दिस अमाउंट ऑफ मनी। मैंने कहा वो तो नहीं है। तो बोली ये कितना है अभी। आई सेड 40,000 इन द अकाउंट, दैट्स इट, इतना ही है। तो बोली वो कर दो। मैं कहा वो नहीं कर सकता, 38,000 ईएमआई जानी है, वो नहीं हो सकता है। तो शी सेड अच्छा ठीक है, घर पे बात करती हूँ। मैंने कहा, कर लो। देन शी आस्क्ड फॉर माय डिटेल्स एंड ऑल। तो डिटेल भी मैंने नहीं भेजी, एसएमएस चलता रहता, व्हाट्सएप नहीं था। तो डिटेल भी मैंने नहीं भेजी उसको 2 दिन तक। सोचता रहा मैं कि भेजूं कि ना भेजूं, मेरे डिटेल के साथ कुछ गड़बड़ ना कर दे ये। तो मतलब बहुत सोचते हैं लोग ना इंडिया में कि पैन कार्ड देना है तो ऐसा ना हो मेरे अकाउंट से पैसे निकल जाए, ऐसा कुछ होता नहीं है। बट वो सोच रहा था मैं पैसे थे नहीं, फिर भी सोच रहा था कि मेरे अकाउंट से पैसे ना निकल जाए। एंड देन आफ्टर 2 days शी फोर्स मी टू सेंड द डिटेल्स।
एंड देन आफ्टर 3 days शी आस्क्ड मी टू चेक द मेल। बोली मेल नहीं चेक किया? मैं कहा नहीं, क्यों? मैं कहा कहाँ चेक करें, इंटरनेट तो होता ही नहीं था फोन में। फिर डोंगल लगा के चेक करना पड़ता था। तो डोंगल लगा के ईमेल चेक किया, उसमें मेल आया था परचेज हैज बीन डन फॉर QVI क्लब ब्रोंज। मैंने कहा यार ये क्या है। मैंने उसको फोन किया, मैं कहा तुमने ये हॉलीडे लिया हुआ है मेरे लिए? हाँ। मैं कहा तुम तो बिजनेस में कह रहे थे शुरू करना है, व्हाई यू वांट ए हॉलीडे फॉर मी? तो बोली दैट इज हाउ वी स्टार्ट द बिजनेस। बट मैंने कहा कि हॉलीडे जाके करूंगा क्या मैं? हमारे लिए हॉलीडे क्या होता है? वही बटर चिकन और क्या। बहुत ज्यादा हो गया, मॉल चले गए, बगल में मॉल था, या पिज्जा, डोमिनोज। डोमिनोज ने भी एक ट्रिक निकाली थी वैसे मैंने। ट्रिक क्या थी, देयर वाज ए कंपनी नेम इज एडवर्शियो एडवर्टाइजिंग इन NFC, एंड नोज दिल्ली, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। तो वहां पे एक कंपनी, तो वो कूपन देती थी। कूपन था ADV01, ADV02। ADV01 बाई वन गेट वन फ्री लार्ज, ADV02 बाई वन गेट वन फ्री मीडियम। 4 कूपन मिले थे, 2 यूज कर लिए, 2 बचे थे। मैं कहा, यार ये तो खत्म हो जाएंगे, क्या करें? मैंने कहा इनका कलर जेरोक्स निकालते हैं। दुकान पे गया, मैंने कहा भाई वो मैट पेपर वाला फोटो वाला है, जिससे मैट फोटोज निकलती है। मैंने कहा वो वाला पेपर है? बोला हाँ। मैंने कहा इसका प्रिंट आउट निकाल दे इस पे। तो उसने निकाला, तो मैट पेपर थोड़ा मोटा हो गया ना वो। कूपन तो मोटे होते हैं ना, पेपर तो पतला होगा। मैंने प्रिंट आउट निकाल दे। मैंने कहा अब इसको बिल्कुल मैच करके उलट के पीछे का भी निकाल दे। पीछे का भी निकाला। उसके बाद मैंने कहा इसको ढेर सारी कॉपी कर दे, इसकी पूरी शीट भर दे इससे। फिर मैं उस कूपन को काटा, और मैं पिज्जा ऑर्डर करता था। हेलो, माय नंबर इज 96546 एंड आई हैव ए कूपन ADV01। ठीक है सर, कूपन आप डिलीवरी बॉय को हैंड ओवर कर दीजिएगा। फिर उसको मैं कूपन काट के हैंड ओवर कर देता था हर बार। कूपन दे देता था, वो ले लेता था। ये चलता रहा सिलसिला करीब 1 साल तक। फिर जब मैंने कूपन दिया, तो मुझे एक दिन डोमिनोज से फोन आया वापस, सर कूपन आ गया, पिज्जा खा गए। उसके बाद फोन आता है कि सर ये जो कूपन आप दे रहे हैं, ये तो 1 साल पहले बंद हो चुका है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे मिला है। जिसने बंद किया उसको पूछो, मुझे क्या ज्यादा है, रखो फोन। तो मैं समझ गया वो बाकी कूपन मेरे खत्म हो चुके, किसी काम के नहीं है। तो पैसा चाहिए किसको? यू शुड नो जुगाड़। इंडिया तो ऐसे ही चलता था। तो काम सारा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी सच बिजनेस को करने के लिए। तो क्यों करना है बिजनेस? व्हाई यू वांट टू मेक एक्स्ट्रा मनी? बाकी मुझे इतना पता था कि इफ आई गो फॉर ए प्राइवेट समथिंग, अपना हॉस्पिटल, लैब, कुछ भी, तो आई कैन मेक गुड मनी। बट मुझे ये भी बहुत क्लियर था कि आई कैन नॉट डू दैट, बिकॉज दैट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ सीड कैपिटल। उसके लिए पैसा चाहिए ऑब्वियसली, हॉस्पिटल हो चाहे लैब हो, कुछ भी करोगे तो 50 लाख रुपए तो चाहिए ही। 25 to 30 to start with on a rental property, and almost 15-20 lakh rupees the running capital, expenses, everything. तो अकेले इतना पैसा समझ में नहीं आ रहा था, कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि आई कैन मैनेज दिस एवरीथिंग ऑन माई ओन। तो शिप्रा ने बोला कि देख ऐसा वैसा है, कर लेते हैं, समझ ले, बहुत सीनियर पार्टनर हैं, इनसे मिल जाके। तो मैंने कहा चलो, अब पैसे तो लगी गए हैं, उसके लगे मेरे लगे एक ही बात है, क्योंकि मैंने तो पैसे दिए नहीं थे। शी ओनली पेड एवरीथिंग। रीजन सिंपल था, मेरे पास थे नहीं। आई डिडंट हैव द कैपेबिलिटी टू टेक मोर लोन्स। एक घर का लोन था, और एक छोटी गाड़ी थी उसका लोन था, तो कुछ बचता नहीं था। बट जुगाड़ इसीलिए निकालने पड़ते थे ना सारे, कि पैसा बचता नहीं, जुगाड़ सारे निकालने हैं, बट कुछ करना भी नहीं है। दैट वाज द चैलेंज। सो मैं प्लान के लिए गया, मिलने के लिए अपलाइन के साथ। बहुत सीनियर पार्टनर है, बहुत बड़े हैं, और इज अ बिग शॉट इन द बिजनेस। यू नो हाउ दे टॉक है। तो बड़ा मजा आ रहा है बैजू है। सो देन मैं वहां गया, जैसे कम बाई 6:30। मैं 6:30 क्या 6 o'clock पहुंच गया। मेरे हॉस्पिटल के पास ही था एसोसिएशन। हॉस्पिटल was सफदरजंग, एसोसिएशन was SDA मार्केट, सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया बगल में ही था। पहुंच गया 6 बजे। अपलाइन आ रहे हैं 9:30 बजे। 3 घंटे। अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि अंदर जाके कोस्टा में कॉफी पी लूं मैं, बहुत महंगी कॉफी होती है। तो मैंने उसी दिन सारे जुगाड़ निकाल लिए कि आसपास टपरी कहाँ पे है, अंडे कहाँ मिलते हैं, समोसे कहाँ मिलते हैं, चाय कहाँ मिलती है। आसपास के सारे एरिया ढूंढ लिए मैंने। तब तक 2-2.5 घंटा करता गया मैं वहां पे। सो आफ्टर 2-2.5 hours वो आए, वर्बेटम फाइनेंशियल वेलकम ऑल डन, 12 बजे तक। बंदे ने एक चाय तक नहीं पिलाई मुझे। मैं कहा यार ये सीनियर पार्टनर है, कॉफी तक नहीं पिलाई, मैं थक चुका हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन थ्रू फाइनेंशियल वर्बेटम वेलकम इन अ सिंगल गो? कौन है यहाँ पे? ड्यूरिंग योर इंडक्शन? यू नो व्हाई?
यू नो व्हाई नॉट? तो आपका अपलाइन डरता है कि अगर इतना कुछ एक साथ कर देंगे तो बिजनेस ही नहीं शुरू करोगे, छोड़ दोगे। इतना प्रेशर यू कैन नॉट टेक। उसको कोई मतलब ही नहीं था। और वेलकम खत्म हुआ है, हालत खराब हो गई है मेरी, बंदा सीधे हॉट पे आ गया। मैं खुद के पैसे दिए नहीं, अब हॉट साइन अप ये क्या चक्कर है भाई। 3.5 hours लगा कंटिन्यूअसली। उसके बाद संडे सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम अपलाइन वाज नॉट देयर, ही सेड आई एम ट्रैवलिंग, सो यू गो देयर इन द सिस्टम, ट्रेनिंग होती है ऐसे ऐसे करके, और वहां जाना है, सीखना है। द ट्रेनिंग वाज आई थिंक 1 और 2 जनवरी 2012, एग्जैक्टली याद नहीं, इसके आसपास की डेट थी। मैं बाहर गया, मतलब बाहर से आया तो उन्होंने बोला 200 रुपए। मैंने कहा लिसन माई अपलाइन नेम इज दिस। तो बोले यस 200 रुपीज। मैं बाहर गया, मैं अपलाइन, मैं कहा पैसे मांग रहे हैं यार। कह रहे हैं हाँ हाँ। मैं कहा आपका नाम बताया, उसके बाद भी मांग रहे हैं। यू नो मैं यूपी से हूँ, और यूपी में ये चलता है कि नाम बता के हम पिक्चर हॉल में चले जाते हैं, अंदर कोई टिकट नहीं मांग सकता हमसे। तो मुझे तो वही कंसेप्ट लगा था कि आप नाम बता देंगे, इनके घर से हैं। ऐसे हमारा मेरा जो घर है वो दैट इज फ्रॉम जौनपुर। किसी को पता है जौनपुर? इज ए स्मॉल टाउन। तो वहां पे एक माफिया है, उसका नाम है धनंजय सिंह। वो इंडिया मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, टॉप 10, आज भी अंदर ही है जेल के, अभी भी अंदर है। तो हम जाके बोलते थे धनंजय भैया घर से हैं। तो सर जाइए बैठिए, टिकट की जरूरत ही नहीं है। तो मैं तो वही सोच के आ गया सिस्टम में, अपलाइन का नाम लिया, मैं उनकी टीम से है, कैब 200 रुपए। तो मुझे धीरे धीरे लग रहा था कि ये धोखा हो रहा है मेरे साथ, कि मेरा जो अपलाइन है वो इतना बड़ा आदमी नहीं जितना बड़ा बताया जा रहा था। तो 200 रुपए दीजिए, बहुत भारी लग रहा था मुझे। भारी क्यों लग रहा था? क्योंकि बीवी को भी लेके आया था, 400 लगे थे। मैं तो उसको बोला चलो घुमा के लाते हैं, बट लेटर ऑन आई केम टू नो कि ये तो पैसे लग गए। तो सिस्टम हो गया, सिस्टम आया मेरे अंदर, देयर वाज नो सीरियसनेस। ठीक है, उन्होंने बोला करना क्या है, मैं कहा कि कर लेते हैं, लेट्स ट्राई। क्योंकि एक ही चीज समझ में आई थी मुझे खाली अभी तक, सो फार ओनली वन थिंग, कि फॉरगेट अबाउट 4 crores फाइनेंशियल मॉडल, इफ आई मेक 40 लाख ऑल्सो आई वॉज ओके विद दैट। ये 40 लाख ही बन जाते हैं टोटल 4 साल में, नहीं टोटल 40 लाख भी आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ट्राई मार लेते हैं इसमें, क्योंकि सैलरी थी केवल 60,000, 60,000 रुपीज उस वक्त। आज भी जो लोग मेरे पोस्ट पे हैं उनकी सैलरी होगी 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख, मतलब 160, 170, आफ्टर फोर्थ पे कमीशन, सिक्स फिफ्थ पे कमीशन, सिक्स पे कमीशन, इफ यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड, कमीशन जो गवर्नमेंट की तरफ से अपग्रेड्स आते हैं, तो इतना ही डिफरेंस है। तो मैंने कहा इफ आई मेक 40 लाख ऑल्सो इट्स ओके, डजंट मैटर, सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट डे आई लाइंड अप 2 plans, ही सेड बुक्स डीवीडी। तो मैंने कहा वो क्या होता है? वो तो बताया नहीं था। कह रहे अरे भाई कल तो तुम्हारा वेलकम हुआ है रात को, तुमने अगले दिन प्लान लाइन अप कर दिया, कह रहे प्रोस्पेक्ट आ रहा है। मैंने कहा यू नेवर टोल्ड कि देयर इज ए कूल ऑफ पीरियड इन बिटवीन, कि बीच में प्लान लाइन अप करने के लिए आपको बुक्स डीवीडी करनी होती है। नहीं नहीं ऐसे प्लान नहीं हो सकता। देन फोन केम ऑनलाइन, नो 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 यू हैव टू फिनिश द वीडियो बुक्स। मैं कहा बुक सही नहीं, कि वॉच द वीडियोज। मैं कहा कहाँ देखें, सीडी नहीं है मेरे पास। तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। फिर अपलाइन साथ में बिठाया, डोंगल लगाया, चीफ का 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, तब बड़ा वाला था, नॉट द स्मॉल वन। मतलब वन ब्लॉक इज ऑलमोस्ट फॉर 50-40 मिनट्स, देन लाइक दिस 4 to 5 hours अंदर बैठ के वीडियो देखा दोपहर में। देखने के बाद मुझे लगा कि प्लान के लिए इसकी क्या जरूरत थी, मतलब व्हाई वाज दिस नीडेड, इसके लिए इससे मेरा वो बंदे का क्या मतलब है। तो एनीवे तो बंदा आया और उसने प्लान देखा, और अपलाइन लैपटॉप खोला, ऑन फॉर ऑन स्पॉट क्लोजिंग, यू नो ऑन स्पॉट क्लोजिंग करते हैं आप लोग? नहीं? हाँ, ऑन स्पॉट क्लोजिंग लैपटॉप खोला, रजिस्टर किया, पेमेंट की बात आई तो बंदे ने कहा टाइम चाहिए थोड़ा, होता है ऐसा। उसके बाद हम दोनों निकल गए। फिर एनी आओ 1 हफ्ते तक क्लोजिंग करता रहा, मैं उसकी बात करता रहा, मिलता रहा, एट द एंड ही गिव द चेक। क्योंकि मुझे ये हो गया था, ईगो पे आ गया था, मैं कहा ये पैसा तो चाहिए मुझे, ये साइन अप तो करना है कुछ भी करके। तो जब मैं चेक लेके आया तो बात गया अपलाइन से, मैं कहा साइन अप हो गया, एंड आफ्टर 1 मंथ मैं अपलाइन को बोला, मैं कहा कि यार वो साइन अप हो गया, बताओ पहला साइन अप हो गया। अपलाइन ने पता क्या बताया, कह रहा है अभी वो मेरा पहला ऑन स्पॉट साइन अप था, कि मैंने आज तक नहीं किया था। तो मेरे लिए तो था कि अपलाइन के लिए नॉर्मल सी चीज है ये, बट फॉर हिम ऑल्सो दिस वाज द फर्स्ट ऑन स्पॉट साइन अप इन पास्ट 3 years। तो मैंने कहा ठीक है करते हैं। फिर 3-4 साइन अप फटाफट फटाफट हो गए, पैसे आ गए। उस वक्त मूवी आई थी रॉक ऑन, रॉक ऑन है रणबीर कपूर, वही था ना? हाँ हाँ वही था, रॉक स्टार, हाँ रॉक स्टार, भूल गया, रॉक स्टार, उसमें एक गाना था, रॉक स्टार का कोई गाना था ना उसमें एक।
तो लोग बोलने लगे कि यार ये तो रॉकस्टार है। तो मैंने कहा क्यों? तुमने आती 4 5 6 साइन अप कर दिया, ही इज अ रॉकस्टार। तो जैसे ही लोगों ने ये बोला तो एसोसिएशन पे चाल बदल गई मेरी तुरंत ही। पता था अंदर से कि मैं क्या हूं। 1 महीने बाद सब छोड़ के चले गए, चाल बदलते ही एवरीबडी लेफ्ट। क्योंकि वो जो सक्सेस वाली बात होती है ना, लोगों ने वो थोड़ा जल्दी दिमाग में डाल दी कि आती 5 साइन अप हो गया, पहला ऑन स्पॉट हो गया ये वो। हमको भी लगा कुछ बड़ा हो गया, और ऑलमोस्ट 4 5 साइनअप्स में आई थिंक 1 लाख रुपीज तक कमा लिया था। तो आधा पैसा तो निकल ही गया था। मुझे लगा यार क्या बिजनेस है ये। वहां मैं 10 साल से पढ़ रहा था, आज तक 10% नहीं निकला नौकरी में। यहाँ पे जो लगाया पैसा, ऑब्वियसली सिस्टर ने डाला पैसा, मैंने नहीं डाला था, बट आधा पैसा तो निकल गया। और क्या चाहिए? तो मजा आ रहा था, बहुत इजी था। बट जब 5 लोग चले गए देन ऑल्सो वाज ओके, ठीक है फिर आ जाएंगे, ऐसा क्या है, उनको फिर से पकड़ लेंगे, वो फिर आ जाएंगे। तो ऑलमोस्ट फॉर 7 8 मंथ्स ये ऐसे ही चलता रहा, मस्ती में आते थे करते थे। संडे सिस्टम, सीधे शेयरिंग में आता था मैं। 2 3 लोगों की शेयरिंग सुनता था, फिर वही बोल देता था मैं भी, क्योंकि हमेशा लेट हो जाता था, डोर क्लोज हो जाता था, मुझे अंदर ही नहीं जाने देते थे। अब वो सीसी हमेशा बोलता था भाई वाई आर ऑलवेज लेट। हमें डर के मारे मुंह छुपाए खड़ा रहता था कि अपलाइन ना देख ले, कोई डाउनलाइन एक दो थे वो ना देख ले। तो इसलिए शेयरिंग में स्मार्टली जाके चुपचाप ऐसे खड़ा हो जाना, आई यू स्टार्ट। उसका सुना, उसका सुना, उसका सुना, फिर हमने भी उसको मिला के कुछ बोल दिया। तो 7 8 मंथ्स पूरा मस्ती। भाई खर्चा कम था इंडिया में, एक्चुअली खर्चा करना आता ही नहीं था। आई नेवर नो हाउ टू स्पेंड मोर मनी। दैट इज व्हाट इट हैज बीन टॉट ना शुरू से। पैसे बचाओ, पैसे बचाने हैं, ज्यादा फालतू खर्चा नहीं करना है, एफडी करनी है, सेव मनी, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब सिखाया गया है, शुरू से देखा था। तो उसी फॉर्मूले पे काम कर रहा था, तो खर्चा तो करना आता ही नहीं था। तो लाइफ वॉज इजी, यहाँ पे भी सब मजे में चल रहा था। तो मेन थिंग जो 8 महीने तक मुझे होल्ड करके रखी, इवन विदाउट नॉट मच साइन अप्स, नॉट रिटेंशन, ज्यादा नहीं हो रहा था, बट वॉट एवर इज होल्ड मी वॉज ओनली वन थिंग, फ्री फूड बाय द अपलाइन। जो फ्री में खाना खिलाता था मुझे, दैट वाज द कैचिंग पॉइंट। मुझे बड़ा पसंद है खाना खाना, मैं बटर चिकन तो जो जुगाड़ से खाते थे, ऑफलाइन असली बटर चिकन खिला रहा था। तो वो दैट वाज द एसडीएम में एक रेस्टोरेंट था विच इज ओन्ड बाय शत्रुघ्न सिन्हा। भाई उसका नाम क्या था आपको याद है? वो कोस्टा के बराबर में जो था, अभी तो उसका नाम चेंज हो गया है। सो एवरी नाइट आफ्टर 10 o'clock आई यूज टू वेट टू डिस्कस विद माई अपलाइन, हैविंग वन ऑन वन कन्वर्सेशन, ठीक है, डिस्कशन फॉर फ्री फूड। मैं और वो बैठते थे, फ्री में खाना खाते थे आराम से। और क्या, कभी कभी मैंगो जूस भी पी लेते थे। ज्यादा पछता नहीं है, प्रॉब्लम ये थी इसलिए कभी कभी। देन आई यूज टू गो बैक। तो 8 महीने तक दिस वॉज द थिंग दैट वॉज होल्डिंग मी, फ्री फूड, फ्री कॉफी। देन आफ्टर 8 months I went to my upline, I said I want to quit. He said okay, no problem, just sit in the plan with me, after that we will talk. मैंने कहा हेलो, आई एम सेइंग आई वांट टू क्विट, हाँ इट्स ओके, सिट विद द प्लान में बैठो साथ में मेरे। तो उसने मुझे प्लान में बिठाया और वो अपना प्लान लिया उसने। तो टेक्निकली वो उस प्रॉस्पेक्ट का प्लान नहीं, मेरा ही प्लान कर रहा था। उसने मेरा प्लान लिया दोबारा से, एंड आफ्टर द प्लान ही सेड हाँ व्हाट हैपेंड, क्या करना है ना, नथिंग, आई एम ओके। उसने सेट कर दिया ना मुझे, वो प्लान प्रॉस्पेक्ट का नहीं मेरा चल रहा था इनडायरेक्टली। तो आई वाज ओके, मैं कहा ठीक है करते हैं। देन अगेन आफ्टर 15 days मैंने कहा इस बार जाऊंगा ही नहीं बोलने आई क्विट। क्विट मतलब घर से ही क्विट, बोलूंगा तो फिर फंसा देगा मुझे वो। अपलाइन ना लोग बोलते हैं ना, हिप्नोटाइज कर लेते हैं, कुछ ना कुछ उनके पास होता है प्रोस्पेक्ट से ना, नो आई डोंट वांट टू मीट योर सीनियर पार्टनर, वो कुछ कर देता है ब्लैक मैजिक एंड ऑल। वैसे ही मुझे लगा कि मैं कहा ये फिर फंसा देगा मुझे, मैं जाऊंगा ही नहीं, तो इसलिए वो मुझे कुछ कर नहीं पाएगा। तो आई नेवर वेंट टू एसोसिएशन, आई डिसाइडेड टू क्विट। सो इन दिस बिजनेस व्हेन यू क्विट, इट सिंपली मींस यू स्टॉप गोइंग टू एसोसिएशन। यू कैन नॉट कैंसिल योर प्रोडक्ट, कि अब मैंने प्रोडक्ट में आग लगा दी, अपने छत से फेंक दी घड़ी को उठा के, तो डजंट मीन्स क्विट ना। क्विट मीन्स यू स्टॉप कमिंग टू एसोसिएशन एंड ट्रेनिंग्स। सो आई स्टॉप कमिंग टू एसोसिएशन एंड ट्रेनिंग, एंड दैट वाज द गुड टाइम टू स्लीप। मैं 10 दिन तक खूब सोया, एवरी डे 3 o'clock हॉस्पिटल से निकल के 4 बजे घर सो जाता था, 7 बजे उठना, डाउनलोड मूवी फ्रॉम torrents.com, वॉच वन मूवी, और उसके बाद फिर सो जाओ मूवी देख के। 15 दिन तक मैं मॉल गया, पिक्चर देखी, खूब सोया,
और जो कुछ चीजें छूट रही थी थोड़ी सी, रिलेटिव से मिलना है मिलना, आई डिड एवरीथिंग। आफ्टर 15-16 days नींद ही नहीं आ रही थी। सारी नींद पूरी हो गई थी क्योंकि अपलाइन जगा के रखते थे ना लेट नाइट तक, एसोसिएशन ये सब वो सब, सारी जो थकावट थी ना अंदर से चली गई थी। 15 दिन के बाद करें क्या? कितना पिज्जा खाएंगे, कितना मॉल में जाएंगे, करें क्या, कितना सो जाएं, समझ में ही नहीं आ रहा था। एसोसिएशन अगेन फॉर फ्री फूड, एसोसिएशन अगेन। अपलाइन ने कहा अरे कहाँ थे, मैंने कहा एग्जाम था यार। कह रहे तुम्हारे एग्जाम? मैंने कहा नहीं नहीं, स्टूडेंट्स एग्जाम थे तो सुबह एग्जाम लेता था, शाम को कॉपी चेक करनी होती थी, देयर वाज लॉट ऑफ वर्क हॉस्पिटल में। आपने तो फोन ही नहीं उठाया अपलाइन सेड। और मैंने कहा मत पूछो, हाथ में ग्लव्स होते थे, फोन नहीं उठा पाता था मैं। तो क्या करता है उसके बाद? अपलाइन ने कहा ठीक है बैठते हैं। फिर एक हफ्ते के बाद मैंने कहा यार मैंने ना छोड़ दिया था। कह रहा हमें पता है। तो मैंने कहा फिर? तो बोले हमें पता था कि भाई तुझे आना है, इफ यू आर सीरियस यू विल कम बैक, और अगर नहीं करना है यू विल गो, समबडी एल्स विल कम, बिजनेस तो रुकने वाला है नहीं। तो मैंने कहा यार ये तो वही वाली बात होगी, इफ यू लव समबडी सेट इट फ्री, और वो चिड़िया जो होती है ना वापस आ जाएगी। तो कह रहा है ऐसे ही कुछ है ये बिजनेस, इफ यू आर सीरियस अबाउट बिजनेस, बिजनेस इज ऑलवेज देयर फॉर यू, यू कम बैक। अदरवाइज लोग आते हैं चले जाते हैं, लोग आते हैं चले जाते हैं। 15 साल से देख रहा हूँ, आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं, जो रहते हैं उनका ही होता है। तो इट्स गुड यू आर बैक। आई सेड ओके, इट्स गुड, तो ठीक है शुरू करते हैं। तो अपलाइन ने कहा ओपन योर नेम लिस्ट। मैंने कहा वो तो लाया नहीं। एसोसिएशन में लाना होता है ना नेम लिस्ट, यू नो, लेके आते हैं आप लोग एसोसिएशन में। तो एसोसिएशन में नेम लिस्ट लाया नहीं था मैं। ही सेड कल लेके आना। मैंने कहा ठीक है। तो नेक्स्ट डे आई बॉट माई नेम लिस्ट। ही सेड शो मी योर ड्रीम्स। मैं कहा ड्रीम क्या, ड्रीम लिस्ट? मैं कहा अभी लाता हूँ। नीचे गया, एक शॉप पे डायरी खरीदी छोटी सी, उस पे लिखा 7-8 चीजें, गुड बैंक बैलेंस, गोल्ड, गाड़ी, आईफोन, 7-8 चीजें लिख के ले आया। मेरा ड्रीम लिस्ट। क्या ड्रीम लिस्ट? मुझे पता है मुझे क्या चाहिए बिजनेस में, वाई टू राइट अ ड्रीम लिस्ट? अपलाइन ने देखा, मुस्कुराया, कोई बात नहीं, वो उसको सब पता है क्या हो रहा है। तो उसने बोला मुझसे हाउ मेनी नेम्स इन योर नेम लिस्ट? मैं कहा 118, 118 ही थे। तो बोले 7 to 8 months इन द बिजनेस, 118 की नेम लिस्ट है, तो क्विट नहीं करोगे तो और क्या करोगे? वी डिसाइडेड कि 300 की नेम लिस्ट होनी चाहिए। तो मैंने कहा हाँ, तो है क्यों नहीं? तो जैसे टीचर से डर लगता है ना, उसे थोड़ा सा डर लग रहा था मुझे। तो बोले डोंट वरी, आज हम 300 की नेम लिस्ट खत्म करके जाएंगे। मैं कह रही ऐसे कैसे 300 की नेम लिस्ट खत्म करके जाएंगे, वाई? तो बोले दिस इज वेयर यू आर स्टक, वाई यू क्विट द बिजनेस ट्वाइस? यही रीजन था ना कि नेम लिस्ट नहीं करूं क्या? तो मैंने कहा एक्चुअली। तो बोले तूने बनाई ही नहीं है नेम लिस्ट। तो मैंने कहा नहीं मैंने बनाई है। तो बोले ये तो सब जजमेंटल नेम लिस्ट है, सुपर जजमेंटल नेम लिस्ट है, और इसमें भी तूने सबको इन्फो कर दिया है 118 को। मैंने कहा नहीं, इज इट, you know, 90% of the people quit the business without even giving info to their entire name list. 90% people quit. So how many of you sitting over here have given info to your entire name list? Just info. Hey, I'm talking in English. Hello, asking something. How many of you have given just info that I'm working on a global project into travel, health, education, water purifier, air purifier, jewelry, lifestyle? It's an amazing project, 4 years, life changing. How many of you have given the info? मैं अंकल लोगों से नहीं पूछ रहा हूं. How many of you have given just info to your entire name list? I know 99% people would have not. So we are not different. We are same. ये ऐसे ही होता है. So my appliance said the same कि नहीं दिया होगा. मैंने कहा हाँ. बोली जो 118 है ना इसको भी नहीं दिया होगा. मैंने कहा हाँ. लिखते वक्त शॉर्टलिस्ट किया, उसके बाद मन में थोड़ा सा और शॉर्टलिस्ट किया, और इन्फो के टाइम से ऊपर शॉर्टलिस्ट कर दिया उसको. जैसे एग्जाम में होता है ना क्वेश्चंस की 10 चैप्टर में कौन सा पढ़ना है, रीड दिस 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और एग्जाम के एक दिन पहले क्या होता है, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बस वही पढ़ने हैं. तो नेम लिस्ट भी वैसी ही बन गई थी. तो मी एंड माई अपलाइन सैट इन गुड़गांव, देयर वाज अ मेट्रो स्टेशन, गुरु द्रोणाचार्य स्टेशन, उसके पास एक सीसीडी था विच इज नाउ इंडसइंड बैंक, है ना भाई. वहां बैठ के रात को 2 बजे तक टिल 2 o'clock in the morning, my upline make sure that I completed the name list to 300. It was so hard. My ego was not allowing to write the name. मैंने कहा इस साले का नाम क्यों लिखूं मैं.
इसका नाम नहीं लिख सकता मैं, क्या लिखूं? वो फेसबुक खुला था, उन्होंने लैपटॉप दिया अपना डोंगल लगा के और कहा कि अपना अकाउंट में लॉगिन करो एंड जस्ट ओपन द नेम लिस्ट इन द फेसबुक, जस्ट फेसबुक, नथिंग एल्स। दिमाग मत लगाना कुछ भी, सोचो मत कि यहां से नाम निकालूं वहां से नाम निकालूं, जस्ट फेसबुक, क्योंकि वही था उस वक्त। एंड आई वॉज सो हेजिटेंट टू राइट द नेम्स ऑल्सो ऑफ द पीपल। नाम लिखने में क्या जा रहा था, बट नहीं हो रहा था मुझसे, बस कैसे कैसे करके मैं नाम लिखे उसके अंदर। एंड व्हाट हैपेंड व्हेन आई वाज राइटिंग द नेम, ऑलमोस्ट रात का 10 बज रहा होगा उस वक्त, तो रात में क्या लिखता किसी को कुछ भी। सो नेक्स्ट डे 300 की नेम लिस्ट लेके दोबारा गुड़गांव बुलाया, फ्रॉम नोएडा टू गुड़गांव, 2 आवर्स। दोबारा अगेन, मैंने क्या गो थ्रू इट लिख तो लिया कि जस्ट गो थ्रू इट अगेन। यू शुड बी फैमिलियर विद योर नेम लिस्ट, तुमको पता होना चाहिए उसमें है क्या, तुमको पता होना चाहिए उसके अंदर है क्या। So when I was just open, he just logged in again into my Facebook and said, just go through your name list. तो जब नेम लिस्ट के थ्रू दोबारा गो थ्रू कर रहा था मैं, तो अंदर से ना एक खुजली सी मचने लगी। हाय भेज देते हैं इनको फेसबुक मैसेंजर पे, एक हाय लिख देते हैं, साला क्या जाता है, रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा ना, व्हाट द वर्स्ट कैन हैपन, ही विल नॉट रिस्पॉन्ड, ओनली डजंट मैटर्स। सो धीरे धीरे आई वाज स्टार्टेड गेटिंग ओपन अप, धीरे धीरे ओपनिंग अप होने लगा। तो आई जस्ट स्टार्टेड सेंडिंग हाय हाय, कॉपी पेस्ट, हाय 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 हाय, सबको सबको सबको, जितने ग्रीन 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 दिखता था ना उसमें फेसबुक में पहले जो ऑनलाइन होते थे सबको। एंड ऑल ऑफ ए सडन कुछ कुछ रिस्पॉन्स आने लग गए, तो मेरा भी एक्साइटमेंट बढ़ने लग गया, रिस्पॉन्स आ रहा है यार ये तो। एंड रिस्पॉन्स स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम दोज पीपल whom I have never contacted from 20 years, 15 years, 10 years, उनका पता ही नहीं मुझे। एंड one person name was Abhishek, he started contacting me, give me your number, I want to talk to you, I was watching your post and everything, ये वो, I want to talk to you। मैंने नंबर दे दिया उसको अपना, तो he called me, और हमारी बात हुई, भाई तू क्या कर रहा है। तो मैंने इसको इन्फो तक नहीं दिया था, जस्ट फेसबुक पे हाय दिया था। आफ्टर राइटिंग फर्स्ट आई रोट हिज नेम इन माय नेम लिस्ट एंड देन आई सेंड ए हाय, और उसके उसने सीधे नंबर मांग लिया मेरा। और कुछ बात नहीं, भाई याद है वो स्कूल में ये करते थे वो करते थे, मैं कहा भाई सब याद है, ये वो घंटा याद नहीं आ रहा था वो है कौन साला। क्यों, अभिषेक नाम के 4 बच्चे होते हैं क्लास में, अभिषेक 1 2 3 4, कौन सा वाला है मुझे याद नहीं आ रहा था। और जब फोटो थी उसकी बड़ी वाली, उसका मुंह इतना बड़ा हो गया था उसमें कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था ये कौन सा वाला है यार, एलिमिनेट भी नहीं कर पा रहा था, वो नहीं है ये नहीं है, वो बोल रहा है मैं हाँ मैं यहाँ मिला रहा हूँ। देन आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम इन आइकॉन, भाई आइकॉन में मिला था मैं पहली बार उसको। यू रिमेम्बर आई टोल्ड तनाज, ये वही बंदा है। तो फर्स्ट टाइम आई मेट हिम इन आइकॉन, वो मुझसे मिलने आया। तो जब मैं, आइकॉन वाज ए फर्स्ट इन्फिनिटी कॉन इन 2012 दिसंबर, 2012 दिसंबर में, तो मैं उससे मिला, तो साथ में 2 3 प्रोस्पेक्ट और भी थे, तो उनको ही मिलना था जिनसे 20 20 साल से नहीं मिला। सो देन वी वर स्टेइंग इन द होटल कॉल्ड एज कोर्टयार्ड बाय मैरियट, हिंजेवाड़ी पुणे। कोई है पुणे से, एनीबडी फ्रॉम पुणे, नो? तो पुणे, हाँ, हिंजेवाड़ी प्लेस यू नो ना, आईटी एंड ऑल, तो वहां पे है मैरियट। दैट वाज आवर फर्स्ट 5 स्टार स्टे ऑफ माय होल लाइफ। तो कमरे में घुसा, यू नो अप्लायंस ने अरेंज कराया था फॉर दैट इवेंट, वेन्यू के पास में ही था, वॉकिंग डिस्टेंस। कमरा देखा, ये देखा, फिर देखा, मैं कहा यार कमरे में तो बाथरूम में दरवाजा ही नहीं है इसके अंदर। पार्टनर भी था साथ में, मैं कहा भाई कैसे बंद होता है, स्लाइड किया, कोई लॉक वॉक समझ में नहीं आया, मैं देख कोई बटन बटन होगा भाई, कहीं से बंद होता होगा। वर्स्ट पार्ट हुआ तो उसमें कर्टन भी नहीं गिर रहे थे, शीशा ही था पूरा। तो हमने डिसाइड किया 1 by 1, होटल देखा, मजा आ गया, फिर नीचे ब्रेकफास्ट करने गए। पता हुआ था कि बूफे होता है, फिर 2 लोग बात कर रहे हैं, मैं और डाउनलाइन। मैं कहा ये मना तो नहीं कर देंगे अंदर जाने के लिए ब्रेकफास्ट करने के लिए हमें, पक्का ना? तो बोला हाँ पक्का पक्का करेंगे करेंगे। ब्रेकफास्ट किया, फिर हमने कहा यार जो प्रोस्पेक्ट है अपने 1 2 उनको होटल में बुलाते हैं। मेरा प्रोस्पेक्ट आया, बंदा पहुंचा होटल में, बाहर खड़ा हूं वेट कर रहा हूं, साइकिल से आया मेरा प्रोस्पेक्ट, साइकिल से। मैं कहा एक तो हम और एक ये, आओ। मैं कहा इसको तो आज कर देंगे साइन अप। साइकिल से आया, सही बता रहा हूँ। वो साइकिल खड़ी करी, मैंने कहा भाई, थोड़ी देर बात होने के बाद मैं कहा सब ठीक चल रहा है, मतलब मैं पूछ नहीं पा रहा था भाई बाइक भी नहीं खरीद पाए क्या। तो बाद में समझ में आया कि वो हेल्थ फ्रीक था थोड़ा सा, साइकिल वाइकिल साइकिलिंग एंड ऑल करता था, बाइक थी उसके पास, बट ही प्रीफर्ड टू ड्राइव बाई साइकिल। तो साइकिल से आया एंड
फिर उसकी थोड़ी प्रोस्पेक्टिंग हुई, होटल में आया, देखा, एंड देन ही आस्क्ड मी व्हाट, क्या कर रहे हो भाई? तो मैंने कहा कुछ नहीं, तुमसे मिल रहा हूँ यार, और कुछ नहीं कर रहा। नहीं यहाँ कैसे, ये होटल होटल में रुक रहा हूँ भाई, तुम तो बड़े आदमी बन गए हो। मैंने आई एम वर्किंग ऑन अ ग्लोबल प्रोजेक्ट, कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूँ, इट्स इनटू ट्राइबल हेल्थ एजुकेशन, बट यू आर डॉक्टर ना? तो मैंने कहा या, तो ये बिजनेस कैसे आ गया बीच में? मैंने कहा भाई डॉक्टरी है, मुझे समझ में आया कि बहुत कुछ किया है मैंने, बस बहुत पढ़ाई करी, 3 डिग्रीज, गोल्ड मेडल्स, ऑनर्स, स्कॉलरशिप सब है। आई टोल्ड हिम यू कैन गूगल मी ऑल्सो। मेरे बारे में 3-4 पेज खुलते हैं गूगल में, तब सब कुछ नीट एंड क्लीन खुलता था मेरे बारे में। और आप, सो एट दैट टाइम आई वाज कॉन्फिडेंट टू से एनीबॉडी यू कैन गूगल मी। अब नहीं बोलता मैं किसी को, बट स्टिल यू कैन गूगल मी। 3 पेज तो खुलते ही हैं मेरे बारे में, 3-4 पेज खुलते हैं। सो आई सेड यू गूगल कर ले यार, बहुत कुछ किया, और जॉब भी अच्छी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, प्रमोशन वमोशन मिलेगा, सब सरकारी सैलरी एंड ऑल, परमानेंट लाइफ टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। बट मुझे जो चैलेंज दिख रहा था, सो आई स्टार्टेड बीइंग ऑनेस्ट विद हिम। मैं कहा द चैलेंज, अभी तो कभी कभी क्या होता है, वी डू प्रोस्पेक्टिंग समटाइम्स और मेनी टाइम्स द फेक वन, व्हाट वी टॉक इज व्हाट वी डोंट फील फ्रॉम इनसाइड, वी जस्ट टॉक, हम उसको बारे में खाली बात करते हैं, वी जस्ट फेक इट एवरी टाइम। तो कभी कभी तो वो मास्क अच्छा लगता है, बट नॉट एवरी टाइम। तो until unless you become honest with your prospect or your downlines, वो कनेक्शन बनेगा नहीं कभी। तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, सडनली आई वाज फेकिंग एवरीथिंग, प्रोस्पेक्टिंग चल रही थी, 5 स्टार होटल एंड ऑल, बिजनेस है ऐसा वैसा, ठीक है, 2,500 में कमरे मिले थे हमें उस वक्त, 5,000 रुपीज में शेयरिंग एंड ऑल दिस थिंग्स सब था। तो फेक चल रहा था, बट धीरे धीरे वो कनेक्ट होने लगा, क्योंकि पुराना दोस्त था, 20 साल के बाद मिला था, तो वो कनेक्ट होने लगा। मैंने कहा भाई सब कुछ है, बट आई हैव सीन द रियलिटी ऑल्सो। रियलिटी वॉज व्हेन आई सॉ माई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, नो बॉस जिसे कहते हैं, डिपार्टमेंट हेड, गेटिंग रिटायर्ड। तो रिटायरमेंट के पहले तक वो जब डिपार्टमेंट में आता था, तो नीचे से ही ऊपर तक सीटी बज जाती थी घंटी की, आगे 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 आ गया, और सब लोग अपनी अपनी सीट पे सेट, बिल्कुल काम पे बैठे, किसी की हिम्मत नहीं बाहर निकल जाए। और अगर कोई मैसेज आ जाए कि आपको बुलाया गया है अंदर, तो लोग पहले हनुमान जी के मंदिर जाते थे, फिर उसके कमरे में जाते थे उसके बाद, कि संकट मोचन बचा लो मुझे, वो सरदार ने अंदर बुलाया है, वो सरदार जी थे कि उन्होंने अंदर बुलाया है। मतलब लोग इतना डरते थे उसके रूम में जाने में। एंड द सेम पर्सन व्हेन गॉट रिटायर्ड एंड केम बैक आफ्टर 3 days फॉर हिज प्रोविडेंट फंड, और वो जो सब सरकारी फंड्स होते हैं लेने के लिए, चपरासी तक उसको देख के खड़ा नहीं हो रहा है, बैठा, और सर, सर आपका पेपर रेडी, अंदर से ले लो। मतलब इतनी कर्सी नहीं, चपरासी जाके वो अंदर से पेपर ला के दे दे। वो बेचारा 60-70 साल का बूढ़ा, वो ऐसे ऐसे करके चल रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, अपना पेपर ऊपर ले रहा है। वो चपरासी जो एक पैर पे ऐसे खड़ा रहता था, 3 साल मैंने देखा है उसको एक पैर पे खड़ा रहते देखे, सर बुला रहे हैं, सर बुला रहे हैं, सर के बाहर खड़े हैं, सर की चाय, ये वो, सर का टेबल। तो मैंने कहा कि व्हेन यू लूज द जॉब, फॉरगेट अबाउट इनकम, यू लूज द रेस्पेक्ट ऑल्सो। यू पीपल रेस्पेक्ट द चेयर, नॉट यू। उस दिन मुझे पर्सनली देखा। एंड देन अनदर टीचर रिटायर्ड, टीचर मतलब प्रोफेसर रिटायर्ड, वन मोर प्रोफेसर गॉट रिटायर्ड, एंड दे रिटायर्ड इन मारुति जेन। तो समझ रहे हैं, सेंट्रो थी मेरे पास, उनके पास जेन थी, मारुति जेन, पता है जेन जी, आपको पता है? वो पहले आती थी एक जेन, अब नहीं आती। ही रिटायर्ड इन जेन। मैंने कहा यार 50 साल नौकरी करने के बाद, इन सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया नंबर 1 इंस्टीट्यूट, एम्स, एशिया टॉप इंस्टीट्यूट एक तरीके से, वो बंदा रिटायर कर रहा है जेन में। मैंने कहा इज दिस द लाइफ आई हैव चोजन फॉर माई सेल्फ? जस्ट बिकॉज सरकारी नौकरी थी, वो 9 बजे कभी नहीं आना, 10 बजे आना, 2 घंटा काम करना, मजे मारना, गाड़ी पे स्टिकर लगा था, सेंट्रल गवर्नमेंट का, चलान नहीं कर सकता, फोन पे बात करते जाऊंगा, पुलिस वाला रोक नहीं सकता था मुझे, दे कैन नॉट स्टॉप मी, इवन इफ आई ब्रेक द सिग्नल, देखा मैं इसे, कैंट यू सी दिस, आई एम ऑन इमरजेंसी ड्यूटी, ओ सर 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 प्लीज गो। और एक बार तो पुलिस वाले से बहस हो गई, उसने कहा सर आप ड्यूटी पे होंगे, बट आपने रूल तोड़ा है, आपने ओवर स्पीडिंग करी है। मैंने कहा ओके, चलान काट दो, आओगे ना हॉस्पिटल तुम भी एक दिन छुट्टी मांगने, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफिसर कैन ओनली गेट ए मेडिकल लीव फ्रॉम ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो पुलिस का एक सबका एरिया डिवाइड होता है कि जिस एरिया की पुलिस है, दैट कैन गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन दैट एरिया ओनली। सेंट्रल पुलिस सेंट्रल के अंडर में आती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्स, सफदरजंग आते हैं,
तो साउथ दिल्ली के सारा स्टाफ पुलिस का हमारे पास आता था छुट्टी लेने के लिए। हमने अगर लिख दी छुट्टी उनकी 1 हफ्ता, तो आईजी भी मना नहीं कर सकता। क्यों? अगर कुछ हो गया उसको तो आईजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि हमने लिखा था इज नॉट फिट। मैंने कहा आना छुट्टी लेना तुम। कह रहा मतलब? मैं कहा तुम लोग आते हो ना इमरजेंसी में छुट्टी लेने, मेडिकल में आना, तुम्हारा नाम याद रख लिया है, वहां सबको बोलूंगा ये छुट्टी लेने आए ना, इस जगह से देना मत। कह रहा अरे सर अब जाओ। तो दैट काइंड ऑफ देखो टशन था अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का। बट एट द एंड यू वांट दैट टशन एंड यू वांट टू रिटायर इन दैट जेन, इट्स ओके, यू रिटायर। सो आई डिसाइडेड नॉट टू। मैंने कहा ये लाइफ मैं नहीं जी सकता। एंड देन एवरी डे इन द मॉर्निंग व्हेन आई कम टू हॉस्पिटल, तो सिग्नल पे गाड़ी रुकती थी, बगल में कोई मर्सिडीज कोई ऑडी दिखती थी, तो मैं बस एक ही चीज सोचता था। तो वो दुबई में आप लोग नहीं सोचते होगे सब, क्योंकि यहाँ तो इजिली मिल जाता है। ठीक है, इफ यू टॉक कॉस्ट वाइज, तो वहां पे जो चीज 1.5 करोड़ की है यहाँ 50 लाख की मिल जाती है। ठीक है, तो मैं सोचता था कि यार इन्होंने ऐसा क्या किया है जिंदगी में जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और कुछ नहीं कि मुझे कोई बिजनेस मिल जाए, सब नेटो मार्केटिंग मिल जाए, आई नो आइडिया। बट आई यूज टू थिंक ओनली वन थिंग, यार इसकी जिंदगी में ऐसा क्या किया था इसने जो इसको ये मिला है जो मैं नहीं कर पा रहा। वो एक ही चीज सोचता था बस मैं, और चला जाता था। तो आई वॉज ऑनेस्ट विद माई फ्रेंड, आई सेड कि भाई सब कुछ देखा मैंने, और मुझे पता है कि जिस दिन मैं रिटायर होऊंगा देयर विल बी नो मनी एंड नो रेस्पेक्ट, एंड आई डोंट वांट टू स्पेंड ऑल माय प्रोविडेंट फंड मनी इनटू द लोन्स आई टुक व्हेन आई वाज यंग। क्योंकि जो पैसा वो ले रहे थे प्रोविडेंट फंड का, वो सब लोन चुकाने के ले रहे थे। ठीक है, हाँ। देन आई टोल्ड हिम ऑनेस्टली कि आई वांट टू बिल्ड अ सिस्टम which can work for me. That's why I'm doing the business, nothing else. I can create the same system in my medical field. Yes, I can create. Why? Hospital. I can make doctors work for me. It's fine. But the only challenge right now is I didn't have money to do that kind of setup. I can manage 50 lakh rupees, yes, but very risky. Why? What if that money gets over and no income is there? What happens? I get broke, hospital close. कोई फायदा नहीं था उस चीज का, because running cost is very high. So there was no other option. The only option available with me was this business. So I told him, "Bhai, this business has given me something called as hope, that I can still create a system." So he said, "Okay, tell me what it is, and I also want to start with you." I said, "अभी तो कुछ है नहीं तुम्हारे लिए, जब होगा तो बताएंगे." अब क्या करता, उसको प्लान दिखा देता अभी कि नहीं? It goes against the rule, not the rule of network marketing, but general human nature rule. कि अगर किसी को कुछ भी थाली में सजा के दे दोगे, इफ यू गिव समबडी, तो फिर वो लेगा नहीं उसको, फिर वो जज करेगा। सो दैट्स व्हाई आई सेड नो। एंड आफ्टर 2 to 3 months, ये जितने नाम मैंने लिस्ट में ऐड किए थे, बिलीव मी, जिन नाम के ऊपर आई वाज मोस्ट हेजिटेंट टू राइट दोस नेम्स, ऑल दोस पीपल साइंड अप, ऑल दोस पीपल साइंड अप। Then I became full timer in the business. So by November 2012, the person who was quitting the business became full timer in February 2013. So what happened in 2 to 3 months? ऐसा क्या हो गया 2-3 महीने में? Name list, dream list, and honesty with the work. Nothing else. कुछ नहीं किया मैंने extra. I just completed the name list. I just gave them info, showed them the plan, and I was honest with my prospect. Technically, I started believing in what I was doing. Before that, it was all game. So I started believing in that, and I became full timer. Full timer बनना आसान नहीं था. It was not easy to quit that government job. I still remember. I was standing outside the library of the college, and my upline was in ISB camp. He was a participant. So I called Sharfun. मैं कहा कि यार बड़ी फट रही है. कहती नहीं हो जाएगा, कर लो कर लो. मैं कहा अच्छा देखो सुनो कंक्लूजन समझो, मेरे राइट लेफ्ट में इतने हैं, राइट में इतने हैं, हो जाएगा? बोले हाँ हो जाएगा. मैंने कहा आप समझो, जो राइट वाले हैं जो पे आउट है उसमें ये है, हो जाएगा? बोले हाँ हो जाएगा. मैं कहा आप समझो, ये जो ये है, इसमें एक मेरा साला भी है, एक मेरी साली भी है, एक मेरी बीवी भी है, हो जाएगा? बोली तुम भी तो हो. मैंने कहा हाँ वो तो है. तो बिलीव इन योरसेल्फ, व्हाई आर यू डिपेंडिंग अपॉन समबडी ऑन योर पे आउट और योर क्रेडिट करते हैं. सो आई बिकेम फुल टाइमर. आई बिकेम फुल टाइमर, बट माई फैमिली डिडंट न्यू, क्योंकि घर से बहुत दिनों से सारी बातें आ रही थी टू शिप्रा
देखना कहीं पढ़ाई लिखाई जो की थी सब छोड़ ना दे, सब डॉक्टरी बेकार हो जाएगी इसकी, नौकरी ना छोड़ दे कहीं ये। सो आई नेवर टोल्ड एनीबडी इन माय फैमिली दैट आई हैव पुट द पेपर्स। तो क्या करना था, हाउ टू मैनेज दिस? एवरी मॉर्निंग 9 o'clock आई यूज्ड टू लीव माय होम एंड गो टू अ डाउनलाइन प्लेस, जो रूम लेके रहते थे, और वहां जाके दोबारा सो जाता था। घर से निकलना जरूरी है। फिर वहां उठते थे 12-1 बजे, एंड देन यूज्ड टू सिट टॉक, बातें बातें करते थे, एंड देन फिर वो भी ड्यूटी पे जाते थे। फिर मैं आई यूज्ड टू कम टू एसोसिएशन बिकॉज माय अपलाइन वाज अ फुल टाइमर, कमिंग टू एसोसिएशन। अब रोज सुबह उठने का मन तो करता नहीं था। देन घर पे बोला आफ्टरनून ड्यूटी लग गई है अब मेरी, तो मैं घर पे 9 बजे उठता था, एंड बाई 2 o'clock आई यूज टू लीव फॉर हॉस्पिटल विच इज एक्चुअली माई डाउनलाइन प्लेस, एंड देन फ्रॉम देयर वी यूज टू गो टू एसोसिएशन। फिर मैं 1 महीना ऐसा करते रहा, मैंने कहा ऐसा कब तक चलेगा? देन मैंने घर पे माहौल बनाना शुरू किया। आई टोल्ड देम इट्स वेरी बैड एटमॉस्फेयर इन द हॉस्पिटल दीस डेज, दे आर bullying us, they used to make me stay in hospital till 8 o'clock in the night. Papa said why? I don't know why. Next day again, आज भी 9 बजे छोड़ा रात को, बट ड्यूटी तो 4 बजे तक है ना। क्या छोड़ नहीं रहे हैं? नौकरी छोड़ दो तुम। मैंने कहा यही सोच रहा हूँ। नेक्स्ट डे मैंने कहा छोड़ दी, हो गया खत्म खत्म। क्योंकि उनकी बड़ी उम्मीदें थी कि डॉक्टर है, ये वो, इतनी सैलरी है, हॉस्पिटल चला सकता है, कर सकते हैं, और ये छोड़ रहा है। तो थोड़ा माइंडसेट करना पड़ा, थोड़ा माइंडसेट करके छोड़ दी नौकरी। नाउ द रियल बिजनेस स्टार्टेड व्हेन यू बिकम फुल टाइम। सो जब तक आप लोग इन दुबई, स्पेशली व्हेन यू आर इन जॉब्स, आपकी जो सैलरी है ना, वो मेरी पूरे साल की सैलरी के बराबर है। माई ओवर ईयर सैलरी वाज ऑलमोस्ट 6 लाख रुपीज, 6 to 7 lakh rupees, and many people sitting over here are earning that kind of money in 1 month or 2 months. So how can you become full timer? How can you stay hungry? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। So the biggest challenge of this market, I don't know, will be the comfort zone of your salaries. But at the end, one day you will retire, and you will lose the money also, the income and the respect also. I am telling you. And you will retire, you will go back to India, यहाँ तो रहेंगे नहीं, and you will retire in Zen only. Believe me, that is what happening. ये होने वाला है। ये बात 10 साल पहले अगर मैं बोलता तो आप बोलते तुमको पता ही क्या है, but now it's already 14-15 years in the business. I have seen this happening many times. So the biggest challenge will be your salary, but you have to understand the point is we are here to build a system which can give me freedom of choice. Time and money, freedom चाहिए. In your jobs, you may make big amount of money in Dubai, but you cannot create a system for yourself. The second choice is a startup. The startup also requires huge amount of seed capital and running capital, and there is a huge risk of failure after putting all that money. स्टार्टिंग में फेल नहीं होता है, ये सब लग जाता है ना, सब कुछ जाने के बाद फेल होता है। So people are fascinated with the startup in India these days because few startups have done very well, but 95% startups have failed. Check the data on Google. 95% startups have failed. They are struggling. 5% ने किया है. So why they failed and why I am struggling in the business? The reason is same. It's not the money. You are already a part of business. You are already owning something. The challenge is only two things. The first challenge is team building. Even if you run a startup, you need a team who can work together side by side. The same challenge is here also, building the team. Why? The same challenge. It's not about selling products, whether it's network marketing, direct selling, or a startup. वहां भी तो कुछ ना कुछ बिक ही रहा है ना, इधर प्रोडक्ट और सर्विस, यहां भी कुछ ना कुछ सेल हो रहा है, इधर प्रोडक्ट और सर्विस. So common factor is product and services in both the things. Second factor includes team building. Here we are equal partners, there you pay salary or maybe equal partners. But the challenge is वहां भी टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, whether इक्वल पार्टनरशिप हो, पार्शियल पार्टनरशिप हो, सैलरी हो, हियर यहां भी टीम बिल्ड करनी पड़ेगी. एंड फॉर दैट वी नीड टू चेंज समथिंग. कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा ना. यू नो वी नीड, दैट मींस टू से आई नीड टू चेंज समथिंग इनसाइड माई सेल्फ.
Otherwise, we will end up dying like an employee only. The most important thing which I feel were two things. If you really want to grow, when I was very hungry to grow, I was used to sit in association on Friday. The most difficult day to sit in association with upline is Friday closing. Every day is okay है, but Friday closing जब पूछता है भाई कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, पढ़ लेती है. तो मैं बैठा अपलाइन के साथ में, एंड अपलाइन क्या कर रहे हो, कितना हो रहा है, ये बता रहा हूँ. आ रही कंफर्म, सामने से एक बंदा आ रहा है, क्या है भाई 13 यूवी का साइन अप है, ई कार्ड दे दो. मैं कहा यार 3 यूवी नहीं हो रहा है साला, ये 13 यूवी का साइन अप कर रहा है, पूरी टीम से 3 यूवी नहीं हो रहा है. तो मोस्ट डिफिकल्ट डे ऑफ एसोसिएशन इज फ्राइडे, बट आई यूज्ड टू गो देयर टू टेक दैट पेन. वो लोगों को ग्रो करता हुआ देखने में अच्छा लगता था, और गुस्सा भी आती थी कि मेरा क्यों नहीं हो रहा, व्हाई आई एम अनएबल टू डू दैट. कि वो 13 लीटर साइन अप कर सकता है, मेरी पूरी टीम से 3 यूवी नहीं हो रहा यार. सो समथिंग इज नॉट राइट. हाँ नहीं सकते हैं. Something was not right. If somebody is doing it and I am not able to do, something is not right with me. और हमें क्या लगता है, बिजनेस सही नहीं है. Something is not right with the process of the business. Confusion सारा वहां पे था. तो the most important thing you need is association. I am telling you, people who are born on Zoom call, COVID, that was a different time. Nobody was able to leave the house. तो मजबूरी थी कि Zoom पे बैठना ही बैठना है. एंड बिजनेस यूज टू रन, वो चलता था बिजनेस. बट आज की डेट में एवरीबडी इज इन जॉब, सब बाहर निकले हुए हैं, काम कर रहे हैं. यू कैन नॉट बिल्ड ऑन जूम, इम्पॉसिबल. यू कैन जनरेट सम यूवीज, बट यू कैन नॉट बिल्ड पीपल ऑन टीम. यू कैन नॉट बिल्ड ए टीम, बिकॉज दैट आज से 15 साल पहले ना प्लान में एक वर्ड होता था, ह्यूमन टच. आज नहीं होता होगा, मुझे नहीं पता, तो प्लान तो बहुत मॉडिफाई हो चुका है. सो व्हेन वी यूज्ड टू टेक वर्बेटम, देयर वाज अ वर्ड कॉल्ड ह्यूमन टच. So company started this business in 1998 on an e-commerce platform. So most of the e-commerce businesses were failing at that time. .com bubble happened 2000 में, 2001 में eBay, Alibaba, Bazi, जब बहुत सारी कंपनीज आई थी, तो बहुत सारी कंपनीज ऊपर नीचे हो रही थी, but we were doing good. The reason of that was the biggest disadvantage or challenge of e-commerce is human touch. At that time, if you asked me to buy a product from e-commerce 2001, I said नहीं, ये नहीं कर सकते भाई, ऑनलाइन नहीं कर सकते, रिस्की है. तो बिगेस्ट चैलेंज वाज दैट. तो ह्यूमन टच वो तब भी इंपॉर्टेंट था, आज भी इंपॉर्टेंट है. People don't come to association because they think it's a waste of money and a waste of time. What is the third reason? Third reason is only 1%. Some emergency, some genuine reason, कोई फंसा है कोई, but 99% people think it's a waste of money and time. But ऐसा है नहीं. सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे है टीम बिल्डिंग. So you need somebody who is an unreasonable upline for you. You know what is unreasonable upline? जो सुनता ही नहीं है, जो मानता ही नहीं है बात को. है आपके पास ऐसा कोई? होगा ना? कुछ लोग तो खुश ही हो गए. अनरीजनेबल तो है. So what you need is an unreasonable upline. Why? Because salary is reasonable. Success cannot be unreasonable. Well, I have got a reasonable amount of success in the business. That's a crap. Salary is reasonable. हाँ, मेरी सैलरी दुबई में reasonable है, अच्छी सैलरी है. सक्सेस को आप कभी नहीं बोल सकते कि सक्सेस इज रीजनेबल. सो यू नीड अनरीजनेबल सक्सेस, ह्यूज सक्सेस. सो यू नीड एन अनरीजनेबल डाउनलाइन, अनरीजनेबल अपलाइन. इसको कुछ मतलब ही नहीं है, उसको आप लॉजिक नहीं दे सकते. देखो मेरे ना 5 प्लान हुए थे, सो आइडियली 1 कन्वर्जन होना चाहिए था, सो अ लोन इज अप्लाइड एंड इट विल कम. सो दिस इज द रीजन व्हाई आई एम अनएबल टू डू बिजनेस दिस वीक. सो इफ योर अपलाइन अंडरस्टैंड्स द लॉजिक एंड ही अग्रीज विद यू, देन यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल. You cannot be successful. These logics never work. I've uploaded hundreds of UVs without any plan. Zero plan, hundreds of UVs. 100 plan, 0 UVs. ऐसा भी हुआ है. प्लान तो बहुत हुए भाई, बट क्लोजिंग 0 है. Why? We are focusing more on the mechanism rather than the intent. So when we start explaining to ourselves or offline that the reason is a holiday, bank holiday, public holiday, festival which is coming, then loans,
something. The moment we start explaining these things to ourselves or our upline, it simply means that you are not hungry for success. You are more into logic. Success cannot be logical also. No? लोग बोलते हैं इस business में 4 crores in 4 years. Is it logical? We say no, it is not logical. But we are explaining the business logically to our upline. कि why am I able to do that? So logic word नहीं आता यहाँ पे. It's illogical, unreasonable. So you need someone who can push you till the time results come. ये push खाली Friday वाला push नहीं है कि push कर दिया आज push कर दिया आज push कर दिया. Upline should keep pushing you, or if you are upline, you should keep pushing yourself and your downline till the result comes. तब तक push करते रहना पड़ेगा and it requires efforts. इसके लिए बहुत दम चाहिए. ये तो बार बार गिव अप होता है, बार बार गिव अप होता है. मेरा भी हुआ है, बहुत बार गिव अप हुआ है यार, नहीं हो रहा अब तो. बट वो गिव अप 8 घंटे की नींद से ज्यादा नहीं रहता. वो मेरा रूल है. व्हेन आई गिव अप आई स्लीप. बस हो जाता हूं तुरंत ही, कोई बात ही नहीं करता किसी से. आई स्लीप. बट मेरा डिसीजन होता है कि उठने के बाद उसको भूल जाना है मुझे. टेंशन में मैं तुरंत सो जाता हूँ. ये अच्छी चीज है. उठने के बाद सब भूल जाता हूं मैं. ये अच्छी चीज है, बट एग्जाम में दिक्कत होती है इससे. रात को पढ़ कर सोए, सुबह उठे साला याद ही नहीं आ रहा यार. एवरीथिंग लाइफ में ना, कि कुछ बोलते हैं लोग कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक. कर्मा अलाइनमेंट. सो कर्मा अलाइनमेंट मीन्स कि हाउ डू आई अलाइन माई हैबिट्स विच कैन गिव मी सक्सेस. सो मेरा ये जो प्रॉब्लम है कि जब मैं सो जाता हूं, उठने के बाद मैं सब भूल जाता हूं. तो दैट बिकम्स अ चैलेंज फॉर मी इन द एग्जामिनेशन. तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या था? मैं रात को जल्दी उठ जाऊं और पढ़ते हुए सुबह सुबह जाके एग्जाम दे दूं. सो पहले जाऊं, फिर उठ के जल्दी पढ़ लूं सुबह सुबह. दैट वाज द ऑल्टरनेटिव. बट अलाइनमेंट कब आएगा? इसको एडवांटेज क्या ले सकता हूं मैं? जो भी टेंशन है मैं तुरंत सो जाऊं, उठने के बाद सब भूल जाऊं टेंशन सारी. सो आई हैव टू अलाइन माई सेल्फ विद माई हैबिट्स की कैसे मैं अपने एटीट्यूड को चेंज करूं, और हाउ डू आई अलाइन विद द बिजनेस. अभी तो बिजनेस ही है फिलहाल, देयर इज नो अदर थिंग. तो आई विल टॉक एवरीथिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस ओनली. उसको मैं अलाइन कैसे करूं? फॉर एग्जाम्पल आई लाइक टू ईट. मुझे खाने का बहुत शौक है, बहुत खाया अपलाइन के पैसे का, भूल नहीं सकता मैं. तो मैंने कहा कि यार ये मेरी कमजोरी है, टू ईट डिफरेंट डिफरेंट फूड्स. अभी दिस ईयर जनवरी में आई वाज इन रशिया फॉर ए हॉलीडे. तो रशिया में क्या है कि आपको बहुत सारी क्विजीन, रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, जितनी भी कंट्रीज है ना, यू विल फाइंड ऑल द क्विजीन्स ओवर देयर. सो मैंने डिसाइड किया था आई एम देयर फॉर 10 days. एवरी डे मॉर्निंग इवनिंग आई विल ईट ए डिफरेंट क्विजीन. सब कुछ खाऊंगा मैं. आई विल नॉट रिपीट ए रेस्टोरेंट और ए टाइप ऑफ क्विजीन. इतना मजा आता है बाहर घूम के खाने में. इस बार अपने पैसे से, ऑफलाइन नहीं था. ठीक है. तो मैंने क्या डिसाइड किया? इफ आई डू दिस मच यूवीज, इफ आई मेक दिस मच ऑफ चेक, देन आई विल गिव माई सेल्फ ए ट्रीट इन दैट रेस्टोरेंट. इट स्टार्टेड, ये पहली बार मैंने किया था समवेयर इन 2013-14 में, कि इफ आई डू 50 यूवीज ऑन पे आउट, इफ आई डू 50 यूवीज ऑन पे आउट, आई विल गो टू ताज. वहां पे एक डिश है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है. आई विल ईट दैट डिश. वैसे नहीं जाता मैं खाने के लिए, बट आई विल नॉट गो देयर टिल द टाइम आई मेक 50 यूवीज ऑन माई पे आउट. तो जो मेरी वीकनेस थी उसको मुझे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना पड़ा. यू हैव टू चैलेंज योरसेल्फ. करना पड़ता है. दूसरा चैलेंज क्या है मेरा? आई एम टेलिंग यू अबाउट माई सेल्फ, यू कैन रिलेट विद योरसेल्फ. दूसरा चैलेंज क्या है कि अगर मैंने कोई बात बोल दी तो फिर वो चीज करनी पड़ेगी मुझे सबके सामने. अगर बोल दी तो आई कैन नॉट बैक ऑफ. कोई मुझसे आगे पूछे वो आपने बोला था, हुआ नहीं किया अभी तक, तो वो मेरे को बर्दाश्त नहीं है. वेदर यू टेक इट एज ए ईगो और जो भी समझ लो. ईगो इज नॉट अ बैड थिंग. ईगो, everybody is born with ego. Nobody is without ego. But if you learn the alignment technique of your ego, okay, how to align with your ego, then results will start coming. So one day in the association, I came to everybody and said, listen, I am buying a house worth 4 crores. क्योंकि मुझे उस साल 4 करोड़ कमाने थे. अच्छा अच्छा, आप कब खरीदना है ये वो? मैंने कहा मैंने देख लिया है. I will buy a house worth 4 crore in next 3 months. And if I don't buy, keep asking me. मैंने कहा पूछते रहना मुझसे, भाई क्या हुआ, भाई क्या हुआ. और जितना बार पूछोगे उतनी बार और मजाक बनाना मेरा, भाई क्या हुआ 4 करोड़ वाले घर का. तो 1-2 बार लोगों ने रोज ही देना शुरू कर दिए. तो डे 1, डे 2, डे 3 शुरू हो गए, भाई 4 करोड़. मैं कहा भाई 3 महीने कहा था. अरे 3 महीने कहा था भाई, अब तो अप्लाई ना 4 करोड़ वाला घर क्या हुआ. दिस वाज 2014-15. 14 की बात है ये. तो दैट स्टार्टेड हर्टिंग मी
कि मुझे करना है, अब तो बेइज्जती हो जाएगी. सो आई स्टार्टेड अलाइनिंग माई ईगो विद माई गोल्स. So you have to find a solution for yourself कि how to align yourself. लेजीनेस है, आलस है ना. मैंने डिसाइड किया है जिस दिन मैं 1000 व्यू मारूंगा साला 24 घंटे सोऊंगा, फोन बंद करके सोऊंगा. 1000 व्यू मार के, 1000 व्यू हुए थे. देन मैं कहाँ था उस वक्त, मैं दुबई में ही था. 2014-15 में अकेले था फ्लैट में. 1 महीने के लिए जब वो मुझे बंद बैन कर दिया था ना, बैन बंद था कमरे में 1 महीने के लिए. तो 1 महीने था अकेले, तो 1000 व्यू हुए थे. मैं कहा हम तो वैसे ही सो रहे हैं यहाँ पे 1 महीने से 12-12 घंटे. 1000 व्यू भी हुए तो साला ऐसे टाइम पे हुए जब सोना ही है, सोते रहो, क्या कर सकते हैं. तो दैट इज हाउ यू अलाइन. इनफैक्ट देयर आर 3-4 टाइप्स ऑफ ट्रेड्स जो मैंने देखा है बिजनेस में होते हैं. 3-4 तरीके के ट्रेड होते हैं, यू नो. एक पूछे क्या, मार्कर है? हाँ, चलेगा ये ना. मैं चेक कर रहा था, एक बार मैंने गलती से इस पे लिख दिया था. ऐसे गए, बाद में मेगा कांड हो गया. सो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस क्वाड्रेंट? हाउ मेनी ऑफ यू आर फेमिलियर विद दिस क्वाड्रेंट? क्या बात कर रहे हो, फाइनेंशियल नहीं हुआ है क्या? देर आर 4 टाइप ऑफ पीपल ना. यू नो दैट 4 पीपल. ओके, एम्प्टी और कप में उस बारे में बात नहीं कर रहा. सी हाउ फास्ट अवर कप्स गेट फुल, ये तो पता है. तो व्हाट इज रिक्वायर्ड, दे बेसिकली बहुत सारी चीजें हैं ना बिजनेस में, तो टू वर्क अपॉन योरसेल्फ, ये वो बहुत कुछ है. बट समवेयर यू हैव टू डिसाइड कि मेरे लिए बेसिक क्या है, मुझे कहाँ पे वर्क करना है सबसे ज्यादा, कहाँ पे कम करना है. क्योंकि एवरी सिस्टम, एवरी ट्रेनिंग विल गिव यू समथिंग. कहाँ कहाँ तक करते रहेंगे. तो फाइंड 2-3 थिंग्स फॉर योरसेल्फ वेयर यू नीड टू वर्क मोस्ट. तो मैंने अपने लिए देखा, अपनी टीम के लिए देखा कि वेयर आई नीड टू वर्क मोस्ट ऑन माई सेल्फ एंड ऑन माई टीम. सो यू विल फाइंड योरसेल्फ समवेयर, you will find yourself somewhere. So it is based on 2 characters, 2 type of things. First thing is, जो कि देखनी पड़ती है सबके अंदर, that is called as commitment. लिखने की जरूरत नहीं है, आप देख लो खाली commitment, ठीक है. And the second thing is capabilities. Capability. 2 तरीके के लोग होंगे बिजनेस में, मतलब आई मीन एवरीबडी हैज गॉट दीस 2 कैरेक्टर्स, कमिटमेंट एंड कैपेबिलिटी, जिसके ऊपर आपकी सक्सेस और फेलियर डिपेंड करता है. नाउ थिंक अबाउट योरसेल्फ, नॉट अबाउट योर डाउनलाइन और योर अपलाइन. जो पहले तो मैं अपलाइन के बारे में सोचूंगा वो किस कैटेगरी में आता है, पहले अपने बारे में सोचेंगे. तो फर्स्ट कैटेगरी, लो कमिटमेंट, लो कैपेबिलिटी. ऐसे लोग मिलेंगे टीम में, और अपने अंदर भी देखो मैं किस कैटेगरी में हूं. लो कमिटमेंट, लो कैपेबिलिटी, ये मेरी कैटेगरी थी. ये फ्री फूड वाले हैं जो एसोसिएशन आते हैं चाय कॉफी के चक्कर में, खिला पिलाएगा अपलाइन, या बैठेंगे साथ में तो कुछ खाने पीने को मिलेगा, टाइम पास करेंगे. तो आई बिलोंग टू दिस कैटेगरी इनिशियली. लो कमिटमेंट, लो कैपेबिलिटी. नेम लिस्ट नहीं है तो कैपेबिलिटी आई कहां से? अगर मैं केपेबल इनफ भी हूं तो बट मेरे पास तो रॉ मटेरियल ही नहीं है. कमिटमेंट, जब नेम लिस्ट ही नहीं बनाएंगे तो कमिटमेंट कैसा? ड्रीम लिस्ट ही नहीं बनाई तो कमिटमेंट कैसा? तो लो कैपेबिलिटी, लो कमिटमेंट. मजे के लिए आता था एसोसिएशन, ठीक है, उसमें भी फायदा ही हो गया बिकॉज एसोसिएशन में रहता था तो मजा आता था. तो उस कैटेगरी में था मैं. नाउ यू डिसाइड, सोचो किसके बारे में ध्यान आ रहा है. लो कमिटमेंट, लो कैपेबिलिटी. जो आता है एसोसिएशन में, खाता पीता है और निकल जाता है. सो फर्स्ट कैटेगरी. Now second category, you can pick anything. Low commitment, high capability. Low commitment and high capability. ये ईगोइस्टिक लोग होते हैं, शाणे, जिन्हें कहते हैं ना शाणे लोग हैं, स्मार्ट पीपल. हाई कैपेबिलिटी, लो कमिटमेंट. अपलाइन ने कहा भाई क्या कर रहा है तू, आया नहीं एसोसिएशन, वेयर वर यू फ्रॉम दीस डेज, ये वो. भाई ये क्लोजिंग कर रहा था, 7 UV की पेमेंट आ गई है और एक 1300 की पेमेंट आ रही है, ई कार्ड भेज दो. अपलाइन तो फैल गया वहीं जमीन पे. अपलाइन ने उसको हड़काने के लिए फोन किया, क्या क्या कर रहा है, उसने 2-4 UV फेंक दिए. ले, है ना ऐसे वाले जिनको 10-15 दिन तक वो फोन नहीं उठा रहे हैं. उसके आप सोचो आज तो पेलूंगा इसको, और फोन किया, भाई एक पेमेंट रेडी है 1300 की, हाँ सेंड मी द ई कार्ड्स. अपलाइन ओके, आया करो कभी कभी.
हाई कैपेबिलिटी लो कमिटमेंट, थर्ड कैटेगरी। अब इसे उल्टा पुल्टा करते रहेंगे हम। लो कैपेबिलिटी, हाई कमिटमेंट, हाई कमिटमेंट, लो कैपेबिलिटी। ये बेचारे करना चाहते हैं, दे कम टू एसोसिएशन, डू एवरीथिंग, इनसे हो नहीं रहा होता है। पीपल स्ट्रगल इन डूइंग कॉलिंग, उनसे इन्फो नहीं हो रही होती, इनवाइट नहीं हो रहा होता। आफ्टर प्लान दे आर अनएबल टू क्लोज द पर्सन। वेरी ऑनेस्ट, सिंसियर, आप जब बुलाओगे, जहां बुलाओगे, दे विल बी ऑलवेज देयर। वो आपसे पहले एसोसिएशन आएंगे, आपके बाद जाएंगे, आपको पिक भी करेंगे, ड्रॉप भी करेंगे, आपके घर पे कोई चैलेंज आएगा तो वहां भी हेल्प करेंगे। दे आर एवरीवेयर बट दे आर अनएबल टू डू। ऐसे लोग हैं, मिलते हैं। लॉयल, ऐसे लोग भी मिलते हैं। देन द लास्ट कैटेगरी, हाई कैपेबिलिटी, हाई कमिटमेंट। दिस इज व्हाट वी नीड in ourselves, in our team also. High capability, high commitment. They are born leaders. ये फोड़ देते हैं बिजनेस आती ही। रॉकस्टार, याद है? फिर उसके बाद रॉकस्टार से यहां आ गया मैं। द पॉइंट इज, कोई भी इसमें से एक कैपेबिलिटी लेके पैदा नहीं हुआ है। सो एवरीबडी कीप्स मूविंग अमंग दिस। तो यू आर नॉट ऑल्सो फिक्स्ड और स्टैग्नेंट विद वन कैटेगरी कि मैं तो ऐसा ही हूं या मैं ऐसा हूं। इफ आई कैन चेंज फ्रॉम दिस टू दिस, एवरीबडी कैन चेंज फ्रॉम दिस टू दिस। मतलब मैं इधर से इधर आ गया था, एंड देन बहुत लंबी जर्नी लगी वापस आने में। इट वॉज ऑलमोस्ट a period of 2 to 3 years. So the point is, everybody has all the 4 categories inside themselves. Which one you want to feed? Which one you want to work upon? किसके ऊपर वर्क करना है ना, अलाइनमेंट किससे करना है? You have to work accordingly. लो कमिटमेंट, लो कैपेबिलिटी। सवाल ये आता है कि अगर मैं इस कैटेगरी में हूं तो मुझे करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, somebody is there in your team or you yourself, these are the risky people. ये बहुत रिस्क होता है इनके साथ, ये धोखा दे सकते हैं कभी भी। लाइक मी, व्हेन आई क्विट द बिजनेस, मेरी टीम पीछे थी, 4-5 लोग ही थे, बट मैंने कहा छोड़ो, हटाओ, अपने आप देख लेंगे वो अपना, हमें कोई मतलब नहीं। तो पीपल लीव देयर पीपल। देखा होगा आपने, लोग छोड़ के चले जाते हैं अपने लोगों को ही। तो पीपल लीव पीपल, ये वही कैटेगरी है। दे आर वेरी रिस्की पीपल। So if you are into this category, I will say try to change your category. How, we'll discuss. But if you find somebody like this in your team, start working with their team. Don't be dependable or leave anything on that person. उस बंदे के ऊपर कुछ छोड़ना मत, वो कभी भी गायब हो जाएगा मेरी तरह, फिर टीम खत्म हो जाएगी। So it's very critical. Now second category, high capability, low commitment. क्या करें इनका? Most of us belong to this category only. High capability, low commitment, कोई भी बेकार नहीं है यहाँ पे, सबकी कैपेबिलिटी है। करना क्या है यार? करना क्या है? प्रेजेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग, प्रेजेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग, यही तो बोलते हैं। और क्या करना है? थिंक अबाउट मेडिकल यार। पेशेंट आ रहा है, उसको कैंसर है, आई हैव टू गिव ए डायग्नोसिस। मैंने बोला है तो उसका हाथ काट देंगे, मैंने बोला है तो उसका जबड़ा काट देंगे, मैंने बोला नहीं है तो छोड़ देंगे, उसको निकल गया, मर जाएगा। सो मच रिस्की वर्क। बॉडी आई है, डेड बॉडी, उसके ऑर्गन्स आए हैं मेरे पास। आई हैव टू डिसाइड ये नेचुरल डेथ है कि मर्डर है। मैंने बोला नेचुरल है तो नेचुरल, मर्डर तो मर्डर, खत्म, कोई कुछ नहीं कर सकता उसके ऊपर। ऑटोप्सी, आई हैव डन सो मेनी ऑटोप्सीज, सो मेनी रिपोर्ट देना था कि यहाँ पे कैंसर है, देखा है ना। अब वो कैंसर है कि छाला है, अंदर मुंह में छोटा सा छाला है, बड़ा तो दिखता है सिगरेट के डब्बे पे, बट अंदर देखोगे छोटा सा छाला है। आई हैव टू गिव रिपोर्ट इट इज कैंसर और नॉट। मैंने बोला है तो वो काट देंगे, मैंने बोला नहीं है वो छोड़ देंगे, फैल जाएगा। दैट मच रिस्की। यहां क्या प्रॉब्लम है? इन्फो, इनवाइट, क्लोजिंग, रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग, एसोसिएशन, खत्म। इसके बियॉन्ड है क्या? यही रिपीट करते रहो, यही रिपीट करते रहो। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या करूं, डू ए न्यू साइन अप, और टीम से कोई साइन अप पकड़ो, नई टीम ने, गो टू न्यू मार्केट एंड स्टार्ट बिल्डिंग। क्या करना है? वही रिपीट करना है। तो यहां क्या है? कुछ नहीं है। सो हाई कैपेबिलिटी, लो कमिटमेंट इज आवर बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ, इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस। हाई कैपेबिलिटी, लो कमिटमेंट। नाउ व्हाट नीड्स टू बी डन to change this commitment level? You need to work more on building relationship with your team, relationship and
स्पेंडिंग मोर टाइम विद योर अपलाइन। ये कमिटमेंट तभी ऊपर जाएगा, दिस कमिटमेंट, ये कमिटमेंट तभी ऊपर जाएगा व्हेन यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद योर पीपल, व्हेन यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद योर ओन ड्रीम्स। तो कमिटमेंट कभी ऊपर नहीं जाएगा, आप हमेशा आलसी रहोगे। द डे यू स्टार्ट फीलिंग योर डाउनलाइन एंड द डे यू स्टार्ट फीलिंग योर ड्रीम्स फ्रॉम इनसाइड, ये जो मैंने लिखा है एक्चुअली इट इज समथिंग दैट वर्क्स टू बी डन, इसको पूरा करना जरूरी है, देन ओनली कमिटमेंट विल गो अप, अदरवाइज इट विल नेवर। सो स्टार्ट बिल्डिंग रिलेशनशिप विद योर अपलाइन एंड योर डाउनलाइन, यही एक तरीका है, देयर इज नो अदर वे। द नेक्स्ट कैटेगरी इज लो कैपेबिलिटी हाई कमिटमेंट। इसका भी बहुत सिंपल सा तरीका है, इफ यू फाइंड समबडी और इफ यू आर गोइंग थ्रू challenges in your activities, understanding, but commitment is high, आप लगे रहते हो, you are the first person to come to association, then you need yourself to be trained harder, you need strong trainings, relationship आपका होगा अपलाइन से, that is why your commitment is high, you realize the purpose, your reasons, आपका commitment high है, इसीलिए आपको पता है ये business important है, it has given that hope, so इसलिए commitment high है। So you need more training. Sit with your upline और उसका practice, 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 practice. You need more training. And the last category, obviously, high commitment, high capability, but very high chances of slipping into low commitment, low capability because of comfort zone. What happened with me? सब हो रहा है, चल रहा है, रिटायर हो गए, पहले साल में रिटायर हो गए थे, तो क्या हुआ, बिजनेस भी रिटायर हो गया था, दोबारा आना पड़ा। So high capability, high commitment, they are born leaders. If you feel you are there or your somebody is downline is there, start plugging them with your uplines because they also need to be trained hard. इससे पहले उनका ईगो बीच में आ जाए और गड़बड़ हो जाए। So they are the leaders, ISBs, ये वही है सारे। Beyond this, there is no fifth category of your personality which exists and required to do something big in life. तो ये चार कैटेगरी हैं बस केवल। Now, if you want to change your category to high capability, high commitment, there are 3-4 things जो करनी है, 3-4 चीजें से फोकस करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा हो जाएगा हाई कैपेबिलिटी हाई कमिटमेंट हो गया जी मैं समझ गया, तो पता तो सबको होता है, everybody has got the knowledge, you have attended so many system training beacons, you have got all the knowledge in the world, but the challenge is with the application, the challenge is how you react and respond when the challenge comes. What is the challenge? Rejection is a challenge, unable to do an info is a challenge, I was not able to make a name list was a challenge, how did I reacted when I didn't get a name list? I quit the business. So that was my reaction. But what was the right response? I increased my name list again. I reworked on my name list again. So there is a difference between the reaction and response. कि दोबारा से उस पर वर्क करना शुरू किया मैंने। रिएक्शन क्या था? छोड़ देते हैं, बिजनेस नहीं हो रहा। रिस्पॉन्स क्या था? कीप एडिंग मोर नेम्स, दोबारा से नेम लिस्ट बनाते हैं। समथिंग इज नॉट राइट। सो द मोस्ट फ्यू थिंग्स टू चेंज द कैटेगरी। फर्स्ट थिंग, ऐसे कोई लिस्ट नहीं है 1 2 3 4, इन जनरल है। द फर्स्ट थिंग इज इफ यू रियली वांट टू चेंज हु यू आर, यू नीड टू पे द प्राइस। बार बार सुना होगा सिस्टम में सब कुछ, कुछ नया नहीं है, बट ये सब कुछ है। यू नीड टू पे द प्राइस। नो चैलेंज, व्हाट इज पेइंग द प्राइस? व्हाट इज पेइंग द प्राइस आपके हिसाब से? हाँ जी, आप बताओ, व्हाट इज पेइंग द प्राइस? जो जो पता है इसमें पे द प्राइस क्या हो रहा है? तो पुशिंग योरसेल्फ हार्डर इज पेइंग द प्राइस, ठीक है। कमिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन। एनीथिंग एल्स? यार ये तो आप लोगों ने मतलब जब से बिजनेस में आए हो तब से सुन रहे होगे पे द प्राइस, पे द प्राइस। क्या? सो पे द प्राइस ऑब्वियसली कि छुट्टियां नहीं मनानी है, हाँ, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस। नो, तो सबसे बड़ी गड़बड़ ये है, मैं यही वर्ड सुनना चाहता था, सेक्रीफाइस। पेइंग द प्राइस इज नॉट सेक्रीफाइस, यू आर पेइंग द प्राइस फॉर योर ड्रीम्स, हाउ कैन इट बी सेक्रीफाइस? सेक्रीफाइस तब होगा जब तुम अपने आप पे द प्राइस करोगे मेरे ड्रीम्स के लिए। यू सेक्रीफाइस योर लाइफ फॉर माई ड्रीम्स, बट व्हेन यू सेक्रीफाइस योर लाइफ फॉर योर ड्रीम्स, दैट इज नॉट अ सेक्रीफाइस, दैट इज पेइंग द प्राइस।
So that is the difference between paying the price and sacrifice. Sacrifice आप देश के लिए करते हैं. For example, if you are a freedom fighter, आप war में गए खत्म, sacrifice. But when you do it for yourself, it's paying the price. So paying the price is not a problem. Everybody here has sometime, somewhere paid the price. But the challenge is we are inconsistent in paying the price. What needs to be done is to pay the price consistently. 4-5 साल तक हमने एक दिवाली छोड़ दी, एक दिवाली पटाखे नहीं फोड़े. I paid the price. I attended system on the way of Diwali. What else you want? Pay the price consistently for 7-8 years, 6 years, 5 years. I didn't attended the birthday. I didn't attended a wedding. I paid the price. Family get together है, मैं नहीं गया. I paid the price. Okay, you paid the price. But pay it consistently. उसको इतना मत सोचो कि एक बार कर दिया तो अब हो गया मेरा, हो क्यों नहीं रहा है. We have to pay the price, keep paying the price consistently till the time results come. ये सबसे बड़ा चैलेंज आएगा. 2 बार कर लोगे ना थोड़ा सा तो सर में दर्द हो जाएगा, परेशान हो जाओगे, कहोगे यार ये क्या हो रहा है. So pay the price consistently. Now, for example, what is a holiday? How do we define holiday? जाना है ना अभी तो. इंडिया में तो सारी सैटरडे की छुट्टियां कैंसिल हो गई. इट वॉज अ 4th सैटरडे और वो छुट्टी दिवाली के 2 दिन पहले शिफ्ट कर दी गई कि आप लगातार ले लो. है? So define holiday, your favorite thing. Anybody can define holiday? What is the definition of your holiday? कोई तो बोलो. हाँ? Definition of a holiday. बताओ. हाँ हाँ जी. Not working. काम नहीं करना इज हॉलीडे. अरे भाई घर पे भी ना हॉलीडे लेके लोग करते क्या है. अगर मैं हॉलीडे ले लूं दिवाली के 2 दिन पहले कि मैं कहूँ सिस्टम नहीं जाना मुझे, कहेंगे काम करो, पर्दे उतारो, अब ये बल्ब चेंज करो, जाला लगाओ उसके अंदर. कैसा हॉलीडे भाई, काम तो करना ही पड़ रहा है. काम यू आर स्पेंडिंग द टाइम डूइंग व्हाट यू लाइक. व्हाट इफ यू कैन स्पेंड द टाइम डूइंग व्हाट यू लाइक होल लाइफ. लाइफ टाइम हॉलीडे वो तो रिटायरमेंट के बाद ही आएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद ही आएगा. सो हॉलीडे इज टेक्निकली डिफाइंड एज परमिशन टू बी इनकंसिस्टेंट. व्हेन यू आस्क फॉर ए हॉलीडे applying, I cannot attend system for 3-4 days. I cannot attend training. I cannot be able to come to association. Why? I'm going for a holiday. So what is this? You are asking to be inconsistent. कि अब मैं consistent नहीं रहूंगा ट्रेनिंग में, अब मैं काम में consistent नहीं रहूंगा. So it is permission to be inconsistent. Simple है holiday. और कुछ नहीं है. So whenever you ask for holiday, technically you are asking for permission कि मैं कुछ नहीं कर रहा, काम नहीं करूंगा. So that is inconsistency. But I pay the price consistently, and if holiday comes in between, you become inconsistent, then you are not paying the price. और ये lifetime नहीं करना यार. Info, invite, closing, payment, e-cards, and paying the price. ये 5-6 चीजें who wants to do whole life? Nobody. So if we do this consistently for 3 to 4 years, then believe you me, इसके बाद जरूरत नहीं पड़ती. Usually 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है, but उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती. But problem क्या है, हम 3 से 4 साल भी नहीं कर पाते. If somebody is pregnant, they have to be consistently pregnant for 9 months. 3 महीने pregnant, आज मूड नहीं है, I will take a break. Possible है क्या? नहीं. It's a natural process. So at least 4 to 5 years consistent. You cannot take a break. So you need to pay the price. यही price है. The second thing जो mindset चाहिए, जो बहुत बार सुना होगा आपने, stay hungry, stay foolish. सुना है, 15 साल पहले भी ये बात होती थी, आज भी वही है, कुछ नहीं बदला है भाई. द बिजनेस सेम. सो स्टे हंग्री, स्टे फुलिश. आई विल से स्टे रिच, बिकॉज पीपल वांट टू बिकम रिच बट दे आर अनेबल टू स्टे रिच. सब फूक देते हैं. हमने भी उड़ाया है, जितना कमाया था सब साफ कर दिया एक बार. तो एक बार वो आता है, व्हेन यू मेक मनी यू विल स्पेंड एवरीथिंग. लॉसेस होंगे, नुकसान होगा, गलत जगह पैसे लगेंगे, सब कचड़ा होगा, एंड देन यू स्टार्ट अर्निंग अगेन. So if you want to stay hungry, stay foolish, जो कहते हैं, stay hungry means what? Simply यार, stay hungry means easy है. You need somebody who can push you, जो बात हुई थी हमारी. But stay hungry वही और कुछ नहीं है कि you always desire.
करना है, कुछ ना कुछ लगे रहना है, वो भूख खत्म नहीं होनी चाहिए। बहुत लोगों को अभी इनफैक्ट वी मेट चीफ ऑलमोस्ट 10 days बैक, यहाँ पे ही इन दुबई ओनली। तो चीफ सेट की बिजनेस स्टैग्नेंट कब होता है एक टाइम के बाद, व्हेन योर लीडर्स, व्हेन यू, दैट मीन्स मी, उन्होंने बोला यू आर नो मोर हंग्री, आई कैन सी। मैं कहा यस चीफ। बोले वॉट एवर यू आर डूइंग इज जस्ट टू मेंटेन योर लाइफ स्टाइल and to enjoy the life. You are no longer hungry. You are no longer the same person who was 10 years back. Has the hunger decreased or not? I said yes. बोले why? मैं कहा क्या करेंगे और क्या करेंगे, हो गया। तो बोले that is the challenge ना, if you don't stay hungry, obviously your people will die, your next level will die, then eventually next, and team will be stagnant. So it is more difficult for me to stay hungry as compared to you. But unfortunately, if your hunger is lower than mine, then that's a problem. जब मैं 10 साल पहले जहां पे था, आई वॉज मोर हंग्री, मुझे पता है, मुझे चाहिए था, मुझे करना था। आज मैं जहां पे हूं, आई एम ओके। बट इफ यू आर ओके राइट नाउ, देन इट्स अ प्रॉब्लम। तो द प्रॉब्लम इज विद स्टेइंग रिच। पैसा एक बार सब कमा लेते हैं, but सब चला जाता है। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट यू नीड टू चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज योर मनी साइकोलॉजी। मनी साइकोलॉजी, मनी ब्लू प्रिंट बहुत बार सुना होगा सब। सो मनी साइकोलॉजी नीड टू चेंज। सैलरी, एफडी, म्यूचुअल फंड्स, ये सब कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट एन आई वॉश। ये सब आई वॉश है। लोगों को पैसा खर्च करने में दिक्कत होती है। विल नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कि लोग बोलते थे ना, ऑब्वियसली एवरीबडी हैज हर्ड दैट पैसा सारे फसाद की जड़ है, मनी इज इविल, डोंट मेक मनी टू मच। घर पे भी सुना होगा कुछ लोगों ने कि पैसे के लिए पागल हो गए हो तुम, संडे को सुबह यहाँ चले आ रहे हो, हाँ, दिवाली के दिन भी तुम लोग प्लान दिखा रहे हो। लोग बोलेंगे आपको यू हैव गॉन मैड, क्रेजी अबाउट मनी, मनी इज इविल, क्या करोगे इतना पैसा, ये वो, ऑल दोस थिंग्स। सो दैट इज कॉल्ड एज ब्लूप्रिंट। आपको लगता होगा नहीं नहीं वो तो घर वाले बोलते हैं, बट हमारा सेट है, ऐसा नहीं होता है। बोलते 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 ही ब्लूप्रिंट चेंज होता है। इसको हम कहते हैं ना ब्रेन वॉश कर दिया बिजनेस में। तो दैट टेक्निकली ब्लूप्रिंट चेंज हो रहा है। ब्रेन वॉश इज ब्लूप्रिंट चेंज हो रहा है। छोटे बच्चे को अगर 2 बार 10 बार उसको रेली एक ही चीज के थप्पड़ मारोगे तो उसके तो वो काम करना बंद कर देगा, उसके हिसाब से वो गलत है। वो गलत है कि नहीं है, बट उसके लिए वो गलत है। तो दैट इज व्हाट इज ब्लूप्रिंट इज। सो मनी ब्लूप्रिंट जो गड़बड़ है, इसको लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया है टीम के अंदर। बंदे हॉट साइन अप करने को तैयार ही नहीं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट डन हॉट साइन अप्स? हॉट साइन अप होता है कि नहीं? मैं पता नहीं, दुबई लोग नहीं करते होंगे। सो हॉट साइन अप्स, people used to prefer keep their money in FDs rather than doing a hot sign up. Why? FD will give me 8% returns in 10 years. तो 10 साल में इन्फ्लेशन भी तो बढ़ जाएगा 8% 7% से। व्हाट विल बी रिटर्न? जीरो। जो प्रॉपर्टी दुबई में 1 मिलियन की थी 10 साल पहले जब मैं आया था, आज वो 7 मिलियन की है, ये डाउनटाउन में। मैंने एफडी कर दिए थे तब 1 करोड़ रुपए, आज क्या होता है 7 साल के बाद भी 2 करोड़ भी नहीं बनते। वो प्रॉपर्टी 7 गुना एक्सपेंड कर गई। So if you want to make money, you need to put money, spend money. If you want to buy time, spend time. If you want to, समझ रहे हो? You need to spend time in the business, give time to the business, then you can buy time for yourself. Now imagine एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। क्या देते हैं, सोच रहा हूँ, प्रिपेयर नहीं है एग्जांपल। लेट्स से यहाँ पे दिस इज शिप्रा, हाँ ठीक है, उसके एक साइड में मैं हूं, इसके आगे हम बात नहीं करेंगे। अब शिप्रा डिड माई हॉट साइन अप, मान लेते हैं तब 2 लाख रुपए में, 2 लाख रुपीज। इमेजिन इफ शिप्रा वुड हैव नॉट डन माई हॉट साइन अप एंड पुट दैट मनी इन एफडी, 15 साल के बाद वो 2 लाख रुपए क्या होता? 4 लाख, 5 लाख, इसके बियॉन्ड तो कुछ नहीं हो सकता था ना। But what happened when she spent 2 lakh taking a risk that this person will do business or not, he will repay me or not, ये रिस्क था, ये करेगा भी कि नहीं करेगा, करेगा तो पैसे देगा कि नहीं देगा, क्या करेगा। But she took the risk of making a hot sign up. अब
कम से कम 1 करोड़ यूवी तो होंगे यहाँ पे, कम से कम 1 करोड़ यूवी। तो मल्टीप्लाई 1 करोड़ बाई 55 और 60,000 रुपीज, कितना हो गया? योर कैलकुलेटर विल नॉट एबल टू कैलकुलेट ऑल्सो, इट विल शो एक्सपोनेंशियल। उतने का बिजनेस हुआ है, तो कुछ तो पैसा बना होगा ना यार। सो व्हाट इज द पॉइंट डूइंग एन एफडी एंड नॉट कमिंग टू वीकॉन, नॉट डूइंग हॉट साइन अप, अनेबल टू स्पेंड मनी टू कम टू एसोसिएशन सिस्टम? 20 दिरहम लगते हैं, सुना है? मैसेज देखा था कल मैंने। दिस इज द रियल इन्वेस्टमेंट। बिफोर दैट यू बॉट द प्रोडक्ट ओनली। दिस इज द रियल इन्वेस्टमेंट। When you do hot sign up, when you come to VCon, when you come to association, खर्चा होता है, मुझे पता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं रात को एसोसिएशन से 2 बजे के बाद निकलता था, 1 बजे खत्म होने के सेशन बाद भी वो पार्किंग वाला बंदा बैठा होता था। मैं कहा ये घर जाएगा तब मैं गाड़ी लेके निकलूंगा, तो 100 रुपए लेगा साला ये सब कुछ किया है मैंने, सब कुछ किया है। पार्किंग वाले सेटिंग कर ली थी आखिरी में, तो आके मैंने कहा भाई महीने का 200 रुपए दूंगा, रोज आऊंगा, तेरी मेरी सेटिंग है। कहता था ठीक है सर। आई डिड एवरीथिंग, बट वो मनी ब्लूप्रिंट जो था वो गड़बड़ था। इट हैज टू चेंज विद टाइम, इट हैज टू चेंज। मैं नहीं कह रहा हूं पैसे उड़ाने को नहीं कह रहा हूं मैं, बट आई एम टेलिंग यू, इफ यू वांट टू बाय टाइम, स्पेंड टाइम विद योर अप्लायंस। इफ यू वांट टू गेट मोर मनी, स्पेंड मनी। यही गेम है, आपको बता रहा हूं, यही गेम है। सो अगर शिप्रा ने मुझे हॉट साइन अप नहीं किया होता, 2 लाख रुपए की एफडी करती तो 5 लाख हो जाते हैं। बट हॉट साइन अप करिए, कम से कम पता नहीं कितने 100 करोड़ों का बिजनेस हुआ और कितनी इनकम हुई, मैं नहीं पता, मैं उसका सीपीए नहीं देखता, मुझे नहीं पता कुछ भी। बट आई एम टेलिंग यू, छोटा सा एग्जाम्पल है ये। पैसा बुरा नहीं है भाई, ज्यादा कमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सोच रहे हो कि मेरे को 5-6 लाख आ रहा है सैलरी यहाँ पे, आई एम मेकिंग 4 लाख 5 लाख रुपीज मंथ, इट्स इनफ। ज्यादा कमा के क्या होगा, आई डोंट नीड मनी, आई एम हैप्पी। अरे भाई, देयर इज नो प्रॉब्लम इन मेकिंग मोर मनी, देयर इज नो प्रॉब्लम। हेल्प अदर्स इफ यू मेक मोर मनी, रेज योरसेल्फ टू हेल्प मैनकाइंड, हेल्प। वी स्टार्टेड वन पर्पस फाउंडेशन, वी डू स्कूलिंग, बच्चों की पढ़ाई, बुक्स, सब कुछ करते हैं हम। ज्यादा पैसा आ गया तो कर दो खर्च, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा वापस, वो भी आएगा, इट विल कम बैक मेनी मेनी टाइम्स मल्टीप्लाइड, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। सो पैसा ज्यादा कमाने में प्रॉब्लम नहीं है, पैसे का सही तरीके से यूज करने में दिक्कत है। प्रॉब्लम वहां से होती है जो मनी ब्लूप्रिंट गड़बड़ हुआ है ना हमारा। वी आर ओके विद अवर सैलरीज की, भाई जो आ रहा है ठीक है, इट्स ओके, आई डोंट नीड मोर। टेक्निकली यू आर सेंडिंग द मैसेज टू द यूनिवर्स दैट आई डोंट नीड मोर, आई एम ओके विद दिस। सबकॉन्शियसली ब्रेन इज ऑलरेडी ट्रेन्ड। सो द प्रॉब्लम विद मनी, ज्यादा पैसा पागल कर देता है दिमाग का, पैसा सारे फसाद की जड़ है, सब कुछ चलता है ना ये। पैसा फसाद की जड़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि, 1 मिनट आप खड़े हो जाइए, सबसे आगे आप मिल गए। अब मान लेते हैं कि इनकी बॉडी बहुत अच्छी है, मसल वसल बहुत तगड़े हैं, इमेजिन करो बस खाली, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉडी, तगड़ा मसल्स है, क्या बिल्कुल बाइसेप तगड़े हैं आपको, और आपने इनको खींच के घुसा मार दिया, क्या होगा? गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। गलती आपकी मसल की है ना, कि वो स्ट्रांग है इसलिए उनको चोट लग गई। मसल अगर कमजोर होगी तो कम चोट लगेगी, और ज्यादा स्ट्रांग होगी ज्यादा चोट लगेगी, तो गलती मसल की हुई ना। पढ़ो, समझे मतलब आप इसका? प्रॉब्लम इज नॉट विद द मसल, प्रॉब्लम इज विद द यूजर ऑफ द मसल। सो द प्रॉब्लम इज नॉट विद द मनी, द प्रॉब्लम इज विद द यूज ऑफ द मनी। उस पैसे को कैसे यूज कर रहे हो, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो पैसा बुरा नहीं होता, द वे यू यूज इट मेक्स इट गुड और बैड। मसल बुरी नहीं थी, उसका काम क्या है, या तो किसी गिरे हुए को उठाने के लिए काम कर लो भाई, मदद कर लो उसकी, वही मसल है, और किसी को घूसा मार के मुंह तोड़ दो, वही मसल है। सो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन अस कि हाउ यू वांट टू यूज दैट मनी, एंड वन डे व्हेन यू विल स्टार्ट मेकिंग इनफ मनी टू डू चैरिटी, हेल्पिंग पीपल, उसका नशा अलग ही है, उसका नशा अलग है। व्हेन यू विल स्पेंड मनी टू सेव समबडीज लाइफ फॉर कैंसर ऑपरेशन और समथिंग लाइक दैट, हार्ट ऑपरेशंस, बच्चों का ऑपरेशन करवाते रहते हैं जिसके अंदर, जिनको हार्ट डिफेक्ट्स हैं बच्चों को, बट ओनली क्यूरेबल वंस, जो ठीक हो सकते हैं। एंड व्हेन दे सेंड ए वीडियो टू यू कि थैंक यू, देयर पेरेंट्स सेंड ए वीडियो टू यू कि आपकी वजह से हमारा हुआ है, यू कैन नॉट इमेजिन दैट फीलिंग। बट उस लायक बने तब ना यार। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड बिजनेस, मदर वेंट टू हॉस्पिटल, मेरा पैसे नहीं थे हॉस्पिटल के देने के लिए,
आई आज माई अंकल कि आप पे कर दो, मैं आपको बाद में वापस कर दूंगा. दैट हैपेंड. तो आज इस लायक बने कि दूसरों की हेल्प कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे. तो व्हाट, दिस बिजनेस ओनली. मेडिकल में नहीं हो पाता, मुझे तो लगता नहीं हो पाता. एंड द लास्ट थिंग व्हाट यू नीड टू बिकम हाई केपेबल एंड हाई कमिटमेंट is something called as keep trying harder. Keep trying harder. That is the only thing. जो बोलते हैं never give up, never give up, ये वही है जो 12 बोला जाता है. when धातुश्री से it's not about falling, it's about getting up again. है ना, ये सब बातें जितनी है ना, ये सब आपको शुरू में लगता है कि यार ये तो मोटिवेट कर रहे हैं, ये तो मोटिवेट कर रहे हैं, but one day will come when you will fall and you want to get up again, and you will be able to get up only when your upline will be there to hold your hand. मैं बता रहा हूँ. And it will keep happening again and again. You will fall again. ये होता रहेगा, ये चलता रहता है. हमारे साथ भी हुआ है, बहुत बार ऊपर नीचे होता रहता है ये सब. इट्स अ पार्ट ऑफ द बिजनेस, जस्ट लाइक हार्ट रेट, ऊपर नीचे होती रहती है. ऑल राइट, सो दिस इज दिवाली. इफ आई आस्क यू टू डू F2 दिस वीक, तो पहले आ जाएगा ओ यार, ये फिर वही बात पे आ गए मुद्दे पे, आगे मुद्दे पे. यही कहना चाह रहे थे आखिरी में, 1.5 घंटा बर्बाद किया हमारा. This is your money blueprint. This is your psychology. You're not able to believe only कि ये हो सकता है. So the problem is with the belief system. And to change the belief system, 2 things only. Train yourself hard and keep spending more time with your appliance. That is the key. And I have some free food. Enjoy. All right. That's it. Thank you. ये भी चाहिए क्या? मुझे लगा ये लेके निकल जाता हूँ आज.